دولت کدا دیکھتے ہی دیکھتے ماتم کدا بن گیا تھا۔ پچھلے 2 ماہ میں موضع فرید پور کے وسنیکوں کے لیے یہ دوسرا بڑا جھٹکا تھا جس نے ان کے دل و دماغ کو بری طرح متاثر کیا تھا۔ سب سے زیادہ غمگین اور جگر فگار اونچی حویلی میں رہنے والے لوگ یعنی چودھری حفیظ اللہ اس کے خاندان کے دیگر افراد تھے، کیونکہ صرف 2 ماہ کے وقفے سے یہ ہوش و حیرت کے پرخچے اڑا دینے والا دوسرا بام بھی اس حویلی پر گرا تھا۔ اونچی حویلی کے اندر اگر کوہرام مچا ہوا تھا تو باہر پورے فرید پور کی حالت بھی دیگرگوں تھی۔ سننے والوں نے اس خبر کو اپنی سماعت کا دھوکہ سمجھا اور دیکھنے والے اس ہو چکا اور دل خراش حقیقت کو تسلیم کرنے سے انکاری تھے، مگر وہی بات کہ جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا، اور لوح محفوظ پر مرقوم الفاظ کو ٹالا جا سکتا ہے اور نہ ہی اسے تبدیل کرنا ممکن ہے۔ 2 ماہ قبل چودھرائن وزیر بیگم چل بسی تھی اور اب اونچی حویلی کی بہو عروج کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا تھا۔ میں اس وقت جائے وقوع پر موجود تھا۔ ان دنوں میری تعیناتی ضلع لائل پور موجودہ فیصل آباد کے ایک تھانے میں تھی۔ فرید پور نامی وہ گاؤں میرے تھانے کے شمال مشرق میں صرف 1 میل کے فاصلے پر واقع تھا، لیکن میں نے ابھی جس سانحے کا ذکر کیا ہے وہ فرید پور سے باہر ایک کچے راستے پر وقوع پذیر ہوا تھا۔ مذکورہ کچا راستہ موضع فرید پور اور موضع شیر گڑھ آپس میں ملاتا تھا۔ یہ لگ بھگ 3 میل کی دوری تھی اور قتل کی یہ واردات کم و بیش اس کے وسط میں ہوئی تھی۔ مجھے جیسے اس واقعے کی اطلاع ملی میں کانسٹیبل محمد ہاشم کے ہمراہ موقع واردات پر پہنچ گیا تھا۔ اس وقت سپہر کے 4 بج رہے تھے۔ فروری کا مہینہ اپنا نصف سفر طے کر چکا تھا، لیکن ابھی تک فضا میں ٹھنڈک کا راج تھا۔ موسم پوری طرح کھلا نہیں تھا۔ بہرحال میں وقوع کے معائنے میں مصروف ہو گیا۔ وہ تحرے قتل کی ایک لرزہ خیز واردات تھی۔ چودھری حفیظ اللہ کی بہو عروج کے بڑے بھائی مشتاق اور کوچوان اللہ دیتا کو بڑی بے دردی سے موت کے کاٹ اتار دیا گیا تھا۔ ابتدائی معلومات کے مطابق مشتاق اپنی بہن عروج کو لینے شیر گڑھ سے فرید پور آیا ہوا تھا۔ ایک رات اونچی حویلی میں گزارنے کے بعد اگلی صبح یعنی آج لگ بھگ 10 بجے وہ عروج کے ساتھ ایک تانگے میں بیٹھ کر اپنے گھر واقع شیر گڑھ کی جانب روانہ ہوا تھا۔ اونچی حویلی والے یہی سمجھے کہ وہ لوگ بخیریت اپنی منزل پر پہنچ گئے ہوں گے، لیکن اس وقت ان کا اطمینان غارت ہو گیا جب کھیتوں میں کام کرنے والے کرامت علی نامک مزدور نے آ کر اس سنگین واردات کی اطلاع دی۔ کرامت علی فرید پور ہی کا رہنے والا تھا، اس لیے وہ حویلی کے عالیشان تانگے ان 3 لاشوں کو بآسانی پہچان گیا تھا۔ عروج، مشتاق اور اللہ دیتا کی لاشیں قسم پرسی کی حالت میں کچے راستے کے کنارے پر پڑی تھی۔ ان کے ابدان لہو لہو ہو رہے تھے۔ انہیں کسی تیز دھار برچے یا تیشے سے قتل کیا گیا تھا۔ ان آلات غارت گری کو ایسی سفاقی سے استعمال کیا گیا تھا کہ وہ تینوں بد نصیب اپنا دفاع نہیں کر سکے تھے، اور حملہ آوروں نے درندگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے موت کے کاٹ اتارنے کے ساتھ ہی برچیوں اور نیزوں کی انہیوں سے ان کے جسم کو گود ڈالا تھا۔ میں نے حملہ آوروں کے الفاظ اس لیے استعمال کیے کہ مقتولین کی لاشوں کے ناقابل بیان حالت کو دیکھ کر مجھے بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ اس رونگٹے کھڑے کر دینے والی واردات کے ذمہ دار 1 سے زیادہ افراد تھے۔ جس تانگے پر سوار ہو کر وہ تینوں اونچی حویلی سے روانہ ہوئے تھے وہ لگ بھگ 1 فرلانگ کے فاصلے پر کھیتوں کے بیچ کھڑا تھا۔ گھوڑا ابھی تک تانگے میں جتا ہوا تھا۔ میں نے مقتولین کی لاشوں کا تفصیلی معائنہ کرنے کے بعد مذکورہ تانگے کا بغور جائزہ لیا۔ تانگے کی اگلی اور پچھلی دونوں سیٹیں خون آلود تھیں۔ مجھے یہ سمجھنے میں ذرا سی بھی دشواری محسوس نہیں ہوئی کہ عروج، مشتاق اور اللہ دیتا کو تانگے پر ہی قتل کیا گیا تھا۔ اس کے بعد ان کی لاشوں کو کچے راستے کے کنارے پھینک کر تانگے کو کھیتوں کے اندر پہنچا دیا گیا تھا۔ شکی القلب قاتلوں کی یہ حکمت عملی فوری طور پر میری سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ اگر وہ بدبخت تانگے کو وقوع پر کھڑا رہنے دیتے تو اسے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں نے موقع کی کارروائی مکمل کی تو سورج مغربی افق پر جھک چکا تھا۔ میرے حکم پر ایک تانگے کا بندوبست کر دیا گیا تھا۔ چودھری حفیظ اللہ کا بیٹا چودھری سمیع اللہ بھی وہاں موجود تھے۔ مقتولہ عروج سمیع اللہ کی بیوی تھی۔ جب میں مذکورہ تینوں لاشوں کو تانگے پر رکھوا کر کانسٹیبل محمد ہاشم کی نگرانی میں ضلع اسپتال بھجوانے لگا تو چودھری حفیظ اللہ نے مجھ سے کہا، ملک صاحب کیا یہ سب ضروری ہے؟ بہت ضروری چودھری صاحب، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، یہ قانونی کارروائی کا حصہ ہے، مگر اسپتال میں تو مردوں کی چیر پھاڑ کی جاتی ہے۔ چودھری سمیع اللہ نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، ابھی 4 ماہ پہلے ہی تو عروج سے میری شادی ہوئی تھی۔ وہاں پر 3 انسانوں کی لاشیں رکھی ہوئی تھی جنہیں بے رحمی سے فنا کے کاٹ اتار دیا گیا تھا، لیکن چھوٹے چودھری کو صرف اپنی بیوی کی لاش کے پوسٹ مارٹم کی فکر پڑی ہوئی تھی۔ یہ ایسا موقع نہیں تھا کہ میں اسے کوئی سخت بات کرتا۔ سمیع اللہ، مجھے تمہارے دکھ اور اس عظیم تر نقصان کا احساس ہے۔ جس طرح جائے واردات کی کارروائی ضروری ہے، بالکل ویسے ان لاشوں کا پوسٹ مارٹم بھی قانون کا تقاضا ہے، اور میں اپنے فرض سے مجبور ہوں، کیونکہ یہ 3 انسانوں کی طبعی موت کا معاملہ نہیں بلکہ ایک لرزہ خیز واردات کا قصہ ہے۔ کسی شیطان صفت شخص نے بلکہ اشخاص نے آپ کی بیوی صالح اور کوچوان کو بہیمانہ انداز میں موت کے منہ میں دھکیلا ہے، لہٰذا پوسٹ مارٹم بہر صورت ہوگا۔ چودھری صاحب، کیا آپ نے شیر گڑھ والوں کو اس سانحے کی خبر کر دی ہے؟ جی ہاں تھانے دار صاحب، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے پشمردہ لہجے میں بولا،
मैंने अपने 2 बंदों को घोड़ों पर उधर भेजा है। अब तक वो लोग शेरगढ़ पहुंच गए होंगे। चौधरी याकूब अहमद के तो सिर्फ 2 ही बच्चे थे, उरूज और मुश्ताक। बोलते बोलते उसकी आवाज रुंध गई। ये सोचकर ही मेरा कलेजा कांप जाता है कि शेरगढ़ की बड़ी हवेली में इस खबर से जो क़यामत टूटेगी, वो याकूब अहमद और उसकी बीवी मुमताज का क्या हशर नशर करेगी। वो बेचारे तो एक पल में बेऔलाद हो गए हैं। चौधरी साहब, मैंने हफीजुल्लाह को मुखातिब करते हुए अपनायत भरे लहजे में कहा, इस वक्त उच्ची हवेली में आपकी मौजूदगी ज्यादा जरूरी है। आप दोनों बाप बेटा घर जाएं, मैं यहाँ के मामला को निपटाने के बाद आपके पास आता हूँ, फिर इस सानिया पर इत्मीनान से बात करते हैं। मेरी बात चौधरी हफीजुल्लाह की समझ में आ गई। समीउल्लाह ने अपने बाप की तरफ देखते हुए मेरी बात की तौसीक कर दी। अब्बा जी, थानेदार साहब ने बिल्कुल सही कहा है। आपकी तबीयत भी आजकल नरम गरम ही चल रही है। आपको हवेली जाकर आराम करना चाहिए। मैं हूं ना यहाँ पर। चौधरी हफीजुल्लाह अपने नमकखारों के साथ ऊंची हवेली की जानिब रवाना हो गया तो मैं अपने काम में लग गया। सबसे पहले मैंने कांस्टेबल हाशिम को लाशों के साथ सरकारी अस्पताल जाने का हुक्म दिया। फिर वहां मौजूद अफराद से पूछताछ करने से पहले मैंने छोटे चौधरी समीउल्लाह से इस्तिफसार किया, चौधरी साहब, आपकी शादी को सिर्फ 4 माह हुए हैं। अगर उरूज को शेरगढ़ जाना ही था तो आपको उसके साथ जाना चाहिए था। आपने अपनी बीवी को अकेले क्यों भेज दिया? अरूज अकेली नहीं, अपने बड़े भाई मुश्ताक के साथ गई थी थानेदार साहब। वो वजाहत करते हुए बोला, मुश्ताक कल ही यहाँ आया था। उसने बताया कि अरूज के बाप यानी मेरे ससुर चौधरी याकूब को अपनी बेटी की बहुत याद आ रही है, इसलिए हफ्ता 10 दिन के लिए अरूज को शेरगढ़ भेज दिया जाए। आगे वैसे भी इलेक्शन का सीजन शुरू होने वाला है। चौधरी याकूब साहब सियासत के पुराने खिलाड़ी हैं और इंतखाबात में न सिर्फ हिस्सा लेना बल्कि जीतना उनकी आदत है और इस आदत को अपना मान कहते हैं। मुश्ताक अपनी इकलौती बहन अरूज को लेने ही आया था। मैं गुज़िश्ता रोज से बीमार हूँ, रात भर तेज बुखार रहा है, इसके साथ ही दस्त का मामला भी है। मैं तो उन लोगों के साथ शेरगढ़ जाना चाहता था, लेकिन अब्बा जी ने सख्ती से मना कर दिया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, लिहाजा मुझे घर में आराम करना चाहिए। मुझे क्या पता था कि हम पर इतनी बड़ी क़यामत टूटने वाली है। बात के अख्ताम पर उसकी आवाज भीग गई। मैंने तसल्ली देने वाले अंदाज में उसके शाने पर हाथ रखा और ठहरे हुए लहजे में कहा, चौधरी साहब, होनी को कोई नहीं टाल सकता। आपकी जिंदगी बाकी थी, इसलिए कुदरत ने आपकी तबीयत खराब कर दी और आप उनके साथ ना जा सके। मालिक के हर काम में कोई न कोई मसलहत पोशीदा होती है, जिसे समझना इंसान के बस की बात नहीं। आप ठीक कह रहे हैं थानेदार साहब। वो आंखों में उधर आने वाली नमी को साफ करते हुए गुलगीर आवाज में बोला, अब तो मुझे सारी जिंदगी इसी दुख और पछतावे के साथ जीना होगा। हौसले से काम ले चौधरी साहब, उसने तशफी भरे लहजे में कहा। फिर दूसरे लोगों की जाने मुतवज्जा हो गया। जैब कुआ के नजदीक लगभग 2 दर्जन मर्दो जन जमा थे। मैंने उनमें से 8-10 अफराद से पूछताछ की, मगर कोई भी ऐसी बात सामने नहीं आई जिसके जरिए मैं इस खूनी वारदात के जिम्मेदारों तक रसाई हासिल कर सकूं। हत्ता कि उच्ची हवेली वालों को इस खूंच का वाक़े से आगाह करने वाला करामत अली भी 3 इंसानों के कातिलों के बारे में कुछ नहीं जानता था। तुमने कितने बजे इन लाशों को कच्चे रास्ते के किनारे पर पड़े देखा था? मैंने करामत अली के चेहरे पर निगाह जमाकर सवाल किया। करामत अली खेतों में काम करने वाला एक मजदूर पेशा शख्स था। उसकी उम्र 40 के आसपास रही होगी। वह दरमियाने कद और सांवली रंगत का मालिक एक दुबला पतला इंसान था। मैंने सबसे पहले तांगे और घोड़े को देखा था थानेदार साहब, और मुझे उस पर हासी हैरत भी हुई थी कि किसी ने उस तांगे को खेतों के बीचों बीच लाकर खड़ा क्यों कर दिया है। करामत अली ने मेरे सवाल के जवाब में बताया, मैं उस वक्त खेतों की दूसरी तरफ कच्चे रास्ते के करीब पहुंचा तो मैंने 3 इंसानों को मुर्दा हालत में पड़े पाया। मैंने उन्हें और तांगे को फौरन पहचान लिया। इसके बाद मैं भागते हुए ऊंची हवेली पहुंचा और छोटे चौधरी साहब को इस बारे में सब कुछ बता दिया। अगर आपको मेरी बात का यकीन ना हो तो चौधरी साहब से पूछ लें। बात के अख्ताम पर उसने चौधरी समीउल्लाह की तरफ देखा। परेशान होने की जरूरत नहीं करामत अली, मैंने तसल्ली अमेज़ अंदाज में कहा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम अच्छी तरह अपने जहन पर जोर देकर मुझे बताओ कि जब तुम इस तरफ आ रहे थे तो तुमने यहाँ कोई गैर मामूली नकलो हरकत देखी थी? क्या देखी थी? वो उलझन ज़दा लहजे में मुस्तफसर हुआ। मेरा मतलब है, मैंने आसान अल्फाज में वजाहत करते हुए कहा, तुमने 2 या 2 से ज्यादा लोगों को यहाँ देखा था, उनकी किसी हरकत को नोट किया था। ये जो 3 लोग अपनी जान से गए हैं, मैं इनकी मौत के जिम्मेदारों की बात कर रहा हूँ। नहीं सरकार, मैंने किसी को उन्हें कत्ल करते नहीं देखा। वो नफी में गर्दन हिलाते हुए बोला, मैं तो काफी दूर से चलता हुआ इस तरफ आ रहा था और जब मैं यहाँ पहुंचा तो मैंने तांगे और इन 3 लाशों को देखा था। छोटे चौधरी साहब की बीवी, उनके साले और कोचवान को किसने कत्ल किया है मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। आप चाहे तो मैं बड़ी से बड़ी कसम खाने को तैयार हूँ। इसकी जरूरत नहीं, तुमने जो बताया मैंने उस पर यकीन कर लिया है। अब जाए वारदात पर मेरा कोई काम बाकी नहीं रहा था। ऊंची हवेली की वजह तस्मिया उसकी बुलंदी थी। चौधरी हफीजुल्लाह के आबा और अजदाद ने मज़कूरा हवेली को आम गांव की जमीन से कमोबेश 7 फुट ऊंचा तामीर कराया था, इसलिए उसे ऊंची हवेली कहा जाता था। इस हुकूमती अमली का सबब यकीनन खुद को गांव के दीगर वसनीकों से मुमताज, बरतर और आला अरफा जाहिर और साबित करना था। चौधरी हफीजुल्लाह की कुल 4 औलादें थी, 3 बेटियां और 1 बेटा। सबसे बड़ी बेटी नायला की उम्र 35 साल थी। उससे छोटी बेटी समीना 31 साल की थी
उसके बाद सोबिया का नंबर था जिसकी उम्र 27 साल थी। इन तीनों बहनों से छोटा समीउल्लाह था जो लगभग 25 साल का था। चौधरी हफीजुल्लाह की तमाम औलादें शादीशुदा थी। तीनों बेटियां अपने घरों में खुशो खुर्रम और शानदार जिंदगी गुजार रही थी। जिंदगी तो समीउल्लाह की भी खुशो खुर्रम और शानदार गुजर रही थी, लेकिन इस अंधोनाक वाक़े ने ऊंची हवेली के अंदर और बाहर मौजूद हर शख्स को अंधोगी कर दिया था। और सबसे ज्यादा बुरी हालत छोटे चौधरी समीउल्लाह की थी। उसने अपनी 9 ब्याहता बीवी को खोया था, और वो भी दिलपाश और जिगर खराश हालात में। जब मैं ऊंची हवेली की 10 सीढ़ियां चढ़कर उस आलीशान इमारत के अंदर पहुंचा तो अंधेरा फैलना शुरू हो गया था। मुझे कुशादा सजे सजाए कमरे में पहुंचा दिया गया। ये ऊंची हवेली का ड्राइंग रूम था, जहां पर कम से कम 50 अफराद के बैठने के लिए आरामदेह सोफे और कुर्सियां लगी हुई थी, जिनके सामने मशाले चौबी मेजें भी मौजूद थी। छोटा चौधरी मुझे शाहाना बैठक में छोड़कर हवेली के अंदरूनी हिस्से में गायब हो गया था। चंद मिनट के बाद चौधरी हफीजुल्लाह मेरे पास आ गया। रस्मी अलग चाय वारदात पर हो चुकी थी, लिहाजा मैं फौरन मकसद की बात पर आ गया। चौधरी साहब, मैंने उसे मुखातिब करते हुए नर्म लहजे में कहा, आपकी उम्र और तजुर्बा मुझसे कहीं ज्यादा है। मैंने मौका वारदात पर जो मनाजिर देखे उनसे मेरे ज़हन में तो एक ही ख्याल आ रहा है, और वो ये कि हम इस सानिह को किसी भी कीमत पर राहज़नी और लूट मार के खाते में नहीं डाल सकते। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उरूज मुश्ताक और कोचवान अल्लाह दिता को तहत तीग करने वाले दरिंदा सिफ्त हमलावरों ने बाकायदा मनसूबाबंदी करके तहरे कत्ल की ये वारदात अंजाम दी है। आप इस बारे में क्या कहेंगे? मुझे भी ऐसे ही लगता है मलक साहब। वो एक बोझल और अफसुर्दा सांस खारिज करते हुए बोला, इन तीनों लाशों की हालत देखकर मैं भी पूरे वसूख से यही कहूंगा कि ये हुंचका वाकया एक इंतकामी कार्रवाई है। आपने मेरा काम बड़ी हद तक आसान कर दिया चौधरी साहब। मैंने उसके चेहरे पर निगाह जमाकर मोतदल अंदाज में कहा, मेरा थानेदाराना जहन भी इसी जाविये पर सोच रहा है। इंतकामी कार्रवाई का सीधा सीधा मतलब है दुश्मनी निकालना। अब आप मुझे अपने दुश्मनों के बारे में खुलकर बताएंगे ताकि मैं इस बेईमाना वारदात के जिम्मेदारों को गिरफ्तार कर सकूं। इस उम्र में तो किसी शको शुबे की गुंजाइश तलाश नहीं की जा सकती कि कोचवान अल्लाह दिता के इस मामले से कुछ लेना देना नहीं था। वो बेचारा तो किसी और की भेंट चढ़ गया। मैं आपकी राय से इत्तफाक करता हूँ मलक साहब। मुझे शक है कि अल्लाह दिता ने हमलावरों को पहचान लिया था। उसे महज इसलिए बलि चढ़ा दिया गया कि अगर वो जिंदा रह गया तो कातिलों का राज फाश कर देगा। बाकी जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है तो मैं अपनी किसी ऐसे दुश्मन को नहीं जानता जो इतनी दीदा दलेरी से मेरे इलाके में घुसकर ऐसी जुर्रत का मुजाहरा कर सके। इस हवाले से मेरा ज़हन किसी और तरफ जा रहा है। किस तरफ चौधरी साहब? मैंने तुरंत इस्तिफसार किया। देखें, हम दोनों इस बात पर तो मुत्तफिक हैं कि कोचवान बेकसूर मारा गया। बाकी बच्चे, वो दोनों भाई बहन, मेरा मतलब है उरूज और मुश्ताक। ये ठीक है कि उरूज मेरी बहू थी, लेकिन इससे पहले वो मुश्ताक की बहन भी थी, और उन दोनों का बाप यानी चौधरी याकूब अहमद एक दुश्मनदार शख्स है। इलेक्शन ज्यादा दूर नहीं है मलक साहब। ऐन मुमकिन है ये साजिश चौधरी याकूब के किसी सियासी हरीफ ने बुनी हो। उसने एक ही झटके में याकूब अहमद को बेऔलाद कर दिया, और वो भी इस तरह कि उसके दोनों बच्चों की मौत का इल्जाम मौजा फरीदपुर पर आए। आपकी बात में वजन है चौधरी साहब, मैंने तायदी अंदाज में कहा। इस हवाले से सोचा जा सकता है। इस सिलसिले में मुझे चौधरी याकूब अहमद से तफसीलन बात करना होगी। क्या आपकी इसे कोई करीबी रिश्तेदारी है? नहीं मलक साहब, आप उसे करीबी रिश्तेदारी तो नहीं कह सकते, अलबत्ता हम सब एक ही खानदान से ताल्लुक रखते हैं। उसने रसान भरे लहजे में जवाब दिया। बाकी चौधरी याकूब से आपकी तफसीली मुलाकात इसी हवेली में मुतवक्का है, और वो भी आज ही। मैंने सपहर में जिन तुबंदों को शेरगढ़ भेजा था उन्होंने यकीनन चौधरी याकूब को सानिही की इतला दे दी होगी। इसके बाद याकूब अहमद का ऊंची हवेली की तरफ रुख करना लाजिम है। वो किसी भी वक्त यहाँ आ सकता है। ये तो बहुत अच्छी बात है, मैंने सरसरी अंदाज में कहा। हमारे दरमियान अहम और संजीदा गुफ्तगू का सिलसिला जारी था कि चौधरी समीउल्लाह की निगरानी में तो मुलाजिम सूरत अफराद सामान्य खुर्दोनोश से लदी हुई ट्रे उठाए बैठक में दाखिल हुए, और उन्होंने अल्लाह की दर्जनवर नेमतों को मेरे सामने रखी मेज पर सजा दिया। खाना खाने के बाद हम तीनों चौधरी याकूब अहमद की सियासत और उसके दुश्मनों के हवाले से गुफ्तगू करने लगे। इस बातचीत में मुझे पता चला कि अरूज का बाप एक दबंग सियासतदान था। आज तक कोई दूसरा उम्मीदवार उसके मुकाबले में कामयाबी हासिल नहीं कर सका था। इस इलाके में मेरी तैनाती को ज्यादा अरसा नहीं हुआ था, इसलिए याकूब अहमद और उसकी सियासत के हवाले से बहुत सी बातें मेरे लिए नई और पुरज दिलचस्पी थी। किसी भी इंसान की मुसलसल कामयाबी जहां उसकी शोहरत, मकबूलियत और इज्जत का बायस बनती है, वहीं पर उसके हासदीन की तादाद में भी इजाफा करती है, और अगर कोई हासिद ताकतवर भी हो तो वो दुश्मनी से बाज नहीं रह सकता। इस इम्कान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि अरूज मुश्ताक और अल्लाह दिता की मौत का जिम्मेदार चौधरी याकूब अहमद ही का कोई बदखा या सियासी हरीफ हो। जैसा कि मैं पहले बताया है कि गुज़िश्ता 2 माह में ऊंची हवेली में बसने वाले चौधरी खानदान को यह दूसरा धचका सहना पड़ा था। 2 माह पहले चौधरी समीउल्लाह की माँ दारुल फानी से दारुल बका रवाना हो गई थी। वजीर बेगम के चहलम के चंद रोज ही गुजरे थे, क्या ये दूसरा सानहा रूनुमा हो गया? चौधरी हफीजुल्लाह के फर्जंदे वाहिद चौधरी समीउल्लाह के दुख को समझने के लिए किसी रॉकेट साइंस की नहीं, बस एहसास के जिंदा होने की जरूरत थी।
متاثرین کے لیے یہ ایک قیامت صغریٰ ایک صدمہ جان کا تھا۔ ہمارے درمیان افسردہ اور دل گرفتہ ماحول میں گفتگو کا عمل جاری ہی تھا کہ ایک ملازم نے وہاں آ کر چودھری حفیظ اللہ کو اطلاع دی، چودھری صاحب نصیر اور منظور واپس آ گئے ہیں، وہ فوراً آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، انہیں بھیجو اندر، چودھری سمیع اللہ نے سپاڑ آواز میں کہا۔ ملازم کے جانے کے بعد چودھری حفیظ اللہ نے مجھے بتایا، ملک صاحب، نصیر اور منظور وہی دو بندے ہیں جنہیں میں نے شیر گڑھ دوڑایا تھا۔ او اچھا، میں نے چونکے ہوئے لہجے میں کہا، پھر پوچھا، اس ملازم کی بات سے تو یہی لگتا ہے کہ عروج اور مشتاق کا باپ چودھری یعقوب احمد نہیں آیا۔ سونا رب خیر کرے۔ چودھری حفیظ اللہ تشویش بھرے لہجے میں بولا، میرے دماغ میں برے برے خیال آ رہے ہیں ملک صاحب، اللہ کرم کرے گا، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ 1 منٹ کے بعد نصیر اور منظور چودھری حفیظ اللہ کے روبرو دست بستہ کھڑے تھے۔ چودھری کے اس افسار پر انہوں نے شیر گڑھ کا جو خیال بیان کیا وہ اس حویلی کے غم عظیم اضافے کا موجب تھا۔ اس سنسنی خیز بیان کا خلاصہ کچھ اس طرح تھا، جب نصیر اور منظور نے شیر گڑھ کی بڑی حویلی میں پہنچ کر چودھری یعقوب احمد کو فرید پور والے اندھوناک خزانے کے بارے میں بتایا تو حویلی میں موجود ہر شخص کے ہوش اڑ گئے۔ مشتاق شادی شدہ تھا اور اس کی 3 سال کی ایک بیٹی تھی جس کا نام آبدہ تھا۔ آبدہ کا شعور ابھی اتنا پختہ نہیں ہوا تھا کہ وہ اپنے باپ کی المناک موت کی اذیتناک شدت کو صحیح معنوں میں محسوس کر سکے، لیکن مشتاق کی بیوی عالیہ اس دلدوز خبر کو سنتے ہی زاروں کی تار رونے لگی تھی۔ چودھری یعقوب احمد اور اس کی بیوی چودھرائن ممتاز بی بی کے دل و دماغ میں گویا بارودی دھماکے ہو رہے تھے۔ چند لمحات اسی افراتفری اور بے سر و سمانی میں گزر گئے۔ چودھری یعقوب کی سمجھ بوجھ نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ اچانک اپنے دونوں بچوں کو کھو بیٹھے گا۔ جب وہ کچھ سوچنے کے قابل ہوا تو اس نے فی الفور فرید پور جانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ نصیر اور منظور کے ساتھ ہی اس طرف آنا چاہتا تھا۔ روانہ ہونے سے پہلے اس نے ایک ملازم کو بھیج کر اپنے چھوٹے بھائی اسحاق احمد کو بلا لیا۔ اسحاق احمد شیر گڑھ ہی میں رہتا تھا۔ اس کی رہائش کا چھوٹی حویلی کہلاتی تھی۔ وہ شیر گڑھ سے نکلنے سے پہلے چودھری اسحاق احمد کو فرید پور والے افسانے سے آگاہ کرنا ضروری سمجھتا تھا، مگر 13 فروری کا دن ان لوگوں کے لیے ایسا منحوس ثابت ہوا کہ ایک کے بعد ایک بری خبر ان پر ایسے وارد ہو رہی تھی کہ وہ اپنے ہوش و حواس کو بچا و سلامت رکھنے میں کلی طور پر ناکام ہو چکے تھے۔ چودھری اسحاق احمد اپنے بڑے بھائی کے بلاوے پر چھوٹی حویلی سے بڑی حویلی تو پہنچا، مگر ایک دل خراش اور لرزہ خیز خبر کے ساتھ۔ چودھری اسحاق کے اکلوتے بیٹے 26 سالہ سلیم احمد کو کسی نے صفاقانہ انداز میں قتل کر کے اس کی لاش کو کھیتوں میں پھینک دیا تھا۔ یہ تم لوگ کیا بکواس کر رہے ہو؟ چودھری حفیظ اللہ نے قطع کلامی کرتے ہوئے عجیب سے لہجے میں استفسار کیا۔ سلیم تو بہت اچھا لڑکا ہے، اسے کوئی کیوں مارے گا؟ چودھری صاحب، ہم نے شیر گڑھ میں جو سنا اور جو دیکھا وہی آپ کو بتا رہے ہیں، نصیر نے لجاجت بھرے انداز میں کہا۔ یہ ایک ٹھوس حقیقت ہے کہ چودھری اسحاق احمد کے اکلوتے بیٹے سلیم کو کسی ظالم شخص نے بے دردی سے گلا کاٹ کر موت کے کاٹ اتار دیا ہے، اس لیے چودھری یعقوب صاحب ہمارے ساتھ یہاں آنے کی بجائے تھانے گئے ہیں۔ منظور نے معتدل انداز میں بتایا۔ انہوں نے ہم سے یہی کہا کہ وہ تھانے میں سلیم کے قتل کی رپورٹ درج کرانے کے بعد یہاں آئیں گے۔ یہ کیا ہو گیا ملک صاحب؟ چودھری حفیظ اللہ دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو تھامتے ہوئے دلگیر لہجے میں کرا اٹھا۔ ان دونوں بھائیوں کی تو دنیا اجڑ گئی۔ ایک ہی دن میں وہ اولاد ایسی نعمت سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ انسان اگر بے اولاد تو کسی نہ کسی طرح صبر آ ہی جاتا ہے۔ وہ دونوں بھائی تو اپنی جوان اولاد کو کھو کر بڑھاپے میں بے اولاد ہو گئے ہیں۔ یہ صدمہ انہیں جینے دے گا اور نہ ہی مرنے۔ چودھری حفیظ اللہ کی آہو بکا اور گریہ زاری کے دوران میں ہی چودھری سمیع اللہ کے خاموش اشارے پر نصیر اور منظور چپ چاپ وہاں سے کھسک لیے تھے اور میں بھی ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ملک صاحب، آپ کیوں اچانک اٹھ کھڑے ہو گئے؟ چودھری حفیظ اللہ نے مجھ سے پوچھا۔ مجھے اس وقت یہاں نہیں تھانے میں ہونا چاہیے چودھری صاحب، میں نے سپاٹ آواز میں کہا۔ آپ نے مجھے جس کام کے لیے بلایا تھا وہ مکمل ہو چکا۔ اب تھانے میں دوسرے فریادیوں کو قانونی مدد کی ضرورت ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ چودھری یعقوب کو تھانے میں بیٹھ کر میرا انتظار کرنا پڑے۔ امید ہے آپ میری پیشہ ورانہ مجبوری کو سمجھ گئے ہوں گے۔ آپ نے بجا فرمایا ملک صاحب، چودھری سمیع اللہ نے گھمبیر آواز میں کہا۔ مشتاق کی طرح میں سلیم کو بھی اپنا بڑا بھائی ہی سمجھتا ہوں۔ مجھے ان دونوں کی عبرتناک موت کا حد درجہ دکھ ہے۔ یہ ساری اموات ایک دوسرے سے جڑی ہوئی لگ رہی ہیں اور ان خونریز واقعات میں اول آخر نقصان ہوا ہے شیر گڑھ کے چودھریوں کا۔ پھر وہ بھی میری دیکھا دیکھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے مضبوط لہجے میں بولا، ملک صاحب، اباجی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے میں آپ کے ساتھ چل رہا ہوں تاکہ چاچا یعقوب کو ایسا محسوس نہ ہو کہ مصیبت کی اس گھڑی میں وہ تنہا کھڑا ہے۔ بیٹا جی، میں تمہارے اس جذبے کو سلام کرتا ہوں، بڑے چودھری نے چھوٹے چودھری کی طرف دیکھتے ہوئے ستائشی انداز میں کہا، لیکن نقصان صرف شیر گڑھ والوں ہی کا نہیں، ہمارا بھی ہوا ہے۔ عروج کی دردناک موت کے ساتھ ہی تمہارا گھر بھی تو اجڑا ہوا ہے، کیا یہ ہمارے لیے قیامت کی گھڑی نہیں ہے؟ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہو کر بولا، ملک صاحب، مجھے اس بات کا ہمیشہ افسوس رہے گا کہ آپ میری حویلی میں تشریف لائے اور بغیر کچھ کھائے پیے رخصت ہو گئے۔ کاش میں جی جان سے آپ کی خاطرداری کر پاتا۔ مل بیٹھنے اور خاطرداری کے ہزاروں مواقع آئیں گے چودھری صاحب، میں نے اسے الوداعی مسافہ کرتے ہوئے تسلی امیز لہجے میں کہا۔ آپ آرام کریں، میں کل کسی وقت آپ سے ملاقات کرنے آؤں گا۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر رہ گیا۔ میں چودھری سمیع اللہ کے ساتھ ایک تانگے پر سوار ہوا اور مذکورہ تانگا میرے تھانے کی جانب بڑھنے لگا۔ وہ رات کے 8 بجے کا عمل تھا۔ میں اس وقت کانسٹیبل واحد حسین کے ساتھ موزہ شیرگڑھ کے آخری کنارے پر واقع ٹالی والے کھو سے چند قدم آگے کھیتوں کے بیچوں بیچ موجود تھے۔ فضا میں ہنکی نہیں
बल्कि बाकायदा ठंडक का राज था। फरवरी का महीना आधा गुजर चुका था, लेकिन मौसम सरमा की रुखसत के इम्कानात अभी ज़ाहिर होना शुरू नहीं हुए थे। हमारे चारों तरफ तारीकी ने बसेरा कर रखा था, मगर मैं और दीगर लोग खेतों के जिस हिस्से में थे वो अच्छा खासा रोशन था। लगभग 2 दर्जन लालटेनों से खारिज होने वाली रोशनी ने हमारे मखसूस माहौल को मुनासिब अंदाज में उजाल दिया था, और मैं इस जर्द उजाले में सलीम अहमद की गर्दन कटी लाश को वाज़ेह तौर पर देख पा रहा था। सलीम की उम्र 26 साल बताई जा रही थी। वो बिलाशुबा एक गबरू जवान था इसलिए कि अब उसके लिए हाल का सीगा इस्तेमाल करना तकनीकी एतबार से दुरुस्त नहीं था। वो माजी करीब का हिस्सा बनकर किस्सा पारीना की हदूद में दाखिल हो चुका था। किसी संगदिल शख्स ने गला काटकर उसे फना के काट उतार दिया था। उसका लिबास, खुसूसन लिबास के बलाई हिस्सा, उसके अपने खून में लथड़ा हुआ था। कटी हुई गर्दन से खारिज होने वाले लहू ने उसके लिबास को पूरी तरह भिगो दिया था। वो एक इंसानी कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात थी। शारक बुरी तरह कट जाने के बाद गर्दन का मुतासिरा हिस्सा वरम की आमाज का बन चुका था। सलीम की लाश का मंजर बिलाशुबा रोंगटे खड़े कर देने वाला था। मैंने उकड़ों बैठकर लालटेनों की रोशनी में मज़कूरा लाश का तफसीली मुआयना किया था, और इस कोशिश में काम की एक बात मेरे हाथ लग गई थी। वो ये कि सलीम को किसी और जगह मौत के घाट उतारने के बाद यहाँ लाकर फेंक दिया गया था, क्योंकि उस वक्त जिस मुकाम पर उसकी लाश पड़ी थी वहां जमीन पर मुझे खून का नामो निशान दिखाई नहीं दिया था, और उसका लिबास इस अमर का गवाह था कि उसकी कटी हुई गर्दन में से किसी कदर खून निकला था। जब मैं अफरा तफरी के आलम में चौधरी समीउल्लाह के साथ आने पहुंचा तो वहां चौधरी यकूब अहमद दो अफराद के साथ पहले से मौजूद था। हमारे दरमियान निहायत ही मुख्तसर संजीदा बातचीत हुई थी, और हम सब फिलफौर जय वकुआ की समत चल पड़े थे। इस शबीना सफर के दौरान में मेरे, समीउल्लाह और यकूब अहमद के बीच आज के दिन की नहुसत और संगीनी के हवाले से खुलकर गुफ्तगू हुई थी। बैरकाफ मैंने वाहिद हुसैन की वजह से जय वकुआ की जरूरी कार्रवाई मुकम्मल कर ली तो चौधरी यकूब अहमद ने मुझसे कहा, मलक साहब आप मेरे साथ बड़ी हवेली चलें, बाकी की बातें वहीं बैठकर करेंगे। जरूर, लेकिन एक आखिरी काम निपटाने के बाद। कौन सा आखिरी काम? मैंने उसने पूछा। सलीम की लाश को फौरी तौर पर सरकारी अस्पताल भिजवाना होगा। ये तो शुक्र करे कि मौसम ठंडा है, वरना अभी तक उस लाश में से बदबू के भपके उठना शुरू हो चुके होते। सलीम का बाप चौधरी इसहाक अहमद भी मौका पर मौजूद था। दोनों भाइयों ने एक लम्हे के लिए एक दूसरे को देखा। उनके चेहरों के तासुरात से मुझे बखूबी अंदाजा हो गया कि मेरी बात अच्छे से अच्छे उनके भेजों में बैठ गई थी। उन्होंने कोई सवाल किया, ना ही एतराज। मैंने सलीम की लाश को तांगे में रखवाने के बाद कांस्टेबल वाहिद हुसैन की जिम्मेदारी में जिले अस्पताल रवाना कर दिया। वाहिद हुसैन के अलावा मैंने 2 और बंदों को भी तांगे पर सवार करा दिया था, ताकि कांस्टेबल को तन्हाई का एहसास ना हो। वो रात का वक्त था और गर्दन कटी लाश के हमरा कांस्टेबल का अकेले सफर करना मुझे ठीक नहीं लगता था। यह तमाम मैंने अपनी इसी सोच के पेशे नजर किया था। इन तमाम कानूनी तकाजों को पूरा करने के बाद मैं उस समीउल्लाह चौधरी बरादरान के हमरा शेरगढ़ के अंदरूनी हिस्से की जाने बढ़ गई। गांव के कमोबेश वस्त में 2 आलीशान हवेलियां पहलू बा पहलू बनी हुई थी, जिनमें से एक साइज के एतबार से दूसरी से बड़ी थी, और वो बड़ी हवेली कहलाती थी, जबकि दूसरी को लोग छोटी हवेली के नाम से याद करते थे। उन दोनों हवेलियों में यकूब अहमद और इसहाक अहमद रहते थे। मैं उस वक्त बड़े चौधरी की रिहाइश का यानी बड़ी हवेली में मौजूद था। उन दोनों भाइयों के अलावा चौधरी याकूब का दामाद भी वहां हाजिर था। मैंने मुनासिब मौजू और हमदर्दी पर अल्फाज में पहले तो उन तीनों के वाक़यात के हवाले से तसल्ली दिलासा दिया, फिर सूरत हाल की संगीनी की तरफ आ गया। मैंने बारी बारी उनके चेहरों को देखने के बाद कहा, एक बात तो रोजे रोशन की तरह आया है कि ये दोनों लर्ज़ाखेज़ वारदातें किसी इंतकामी कार्रवाई का नतीजा है, और इनके पीछे किसी एक ही शख्स का हाथ है, और वह शख्स ताकत और इख्तियार में अगर आप लोगों के हमपल्ला नहीं तो आपसे कम भी नहीं है, क्योंकि राहज़न और लुटेरे ऐसी मुनज़्ज़म कार्रवाई नहीं कर सकते। मकतूलिन की जानों के सिवा कुछ भी नहीं किया। इसका एक ही मतलब निकलता है कि कातिलों को सिर्फ सलीम, मुश्ताक और रूज को ही मौत के घाट उतारने के लिए भेजा गया था, ताकि आप दोनों भाइयों की पूरी औलाद का सफाया हो जाए। शेरगढ़ की दोनों हवेलियां अपने मुस्तकबिल के वारसों से महरूम हो जाए, और आपके दुश्मन की ये नापाक चाल बदकिस्मती से कामयाब रही है। उस वक्त आप दोनों भाई अपनी औलादों को हमेशा के लिए खो चुके हैं। अगर मेरा अंदाजा गलत है तो आप लोग मेरी तस्दीक कर दें, लेकिन अगर आप मेरे ख्याल से इत्तफाक करते हैं तो फिर आप मुझे अपने तमाम दुश्मनों के बारे में तफसीलन आगाह करें, ताकि मैं जल्द अज जल्द उन 3 इंसानों की अमवात के हकीकी जिम्मेदारों तक रसाई हासिल करके उन्हें करारे वाकई सजा दिलवा सकूं। मुझे यकीन है कि आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे। मलक साहब, सच्ची बात तो यह है कि इसहाक अहमद से किसी की बराह रास्त कोई दुश्मनी नहीं। चौधरी याकूब ने गम से बोझल आवाज में जवाब दिया, अलबत्ता मेरे कई एक सियासी दुश्मन जरूर हैं। मैं अल्लाह के फजल से हमेशा इंतखाबात में जीतता रहा हूं, और जाहिर है ये बात बहुत से लोगों को अच्छी नहीं लगती। इस वक्त भी इलेक्शन की रिवायती सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं, और इस बार मेरे मुकाबले में पिंड गोंदला वाला का एक जमींदार अहमद नवाज गोंदल इलेक्शन लड़ रहा है। मेरे पास ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है कि मैं दावे से कह सकूं कि कत्ल गारत गरी की इन वारदातों का जिम्मेदार अहमद नवाज गोंदल ही है, लेकिन ज़ाहिर किन हालात में मेरा ध्यान सबसे पहले उसी की तरफ जाएगा ना। मैं आपकी बात अच्छी तरह समझ गया चौधरी साहब। मेरे सानिद भरे लहजे में कहा, मुझे अपनी तफ्तीश के आगाज के लिए एक नाम मिल गया। मैं आपके सियासी हरीफ अहमद नवाज गोंदल को अपने तरीके से चेक कर लूंगा। इसके अलावा कोई और अहम बात आप लोगों के इल्म में हो तो मुझे जरूर बताएं, ताकि मुझे अपने काम में मदद मिल सके। चौधरी इसहाक अहमद ने अपनी जेब में हाथ डालकर करेंसी नोट का एक टुकड़ा बरामद किया और उसे मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोला, हो सकता है आप इस नोट के जरिए उन सिपाह कातिलों का सुराग लगाने में कामयाब हो जाएं।
मैंने करंसी नोट के इस टुकड़े को अपने हाथ में लेकर उसका मुआयना किया। वो 100 रुपए मालियत के नोट का आधा हिस्सा था, यानी नोट को दरमियान से काट कर 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया था, जिनमें से एक हिस्सा इस वक्त मेरे हाथ में था। मैंने मज़कूरा 100 रुपए के नोट के ज़ैल में काट का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया कि कटे और फटे हुए नोट की हालत में नुमाया फर्क होता है, और वो फरीक मेरी उकाबी निगाह से छुपा नहीं रह सका था। नोट के मकाम अलहदगी पर किसी तेजधार कैंची या छुरी के आसार वाज़ेह तौर पर देखे जा सकते थे। अगर इस नोट को फाड़कर 2 टुकड़ों में बांट दिया गया होता तो उसकी सतह इतनी हमवार और शार्प न होती। आपको 100 रुपए वाले नोट का ये टुकड़ा कहाँ से मिला चौधरी साहब? मैंने सरसराती हुई आवाज में चौधरी इसहाक से इस्तफसार किया। ये मुझे नहीं, फीका तेली को मिला है मलक साहब। छोटे चौधरी ने मुझे बताया, ये वही बंदा है जिसने हवेली आकर हमें इस आने की इतला दी थी। 100 रुपए का यह आधा नोट सलीम की लाश के करीब एक पत्थर के नीचे इस तरह दबाकर रखा गया था कि देखने वाले की नजर उसी पर पड़े। ये कारस्तानी यकीनन उसी कातिल की है जिसने आपके बेटे सलीम को फना के घाट उतारा है। मैंने नोट के इस टुकड़े को उलट पलट कर देखने के बाद पुरसोच अंदाज में कहा, एक तरह से इसका कोई खुफिया पैगाम है। मैं बहुत जल्द इस पैगाम को समझ जाऊंगा। मैं लम्हे भर के लिए थमा, फिर मज़कूरा नोट के टुकड़े को अपनी जेब में रखने के बाद इन अल्फाज में इजाफा कर दिया। अंधेरे के बायस में जाए वकुआ हर्ष के गिरदनवाहा का तसली बख्श जायजा नहीं ले सका। आप लोगों से मेरी इस्तदा है कि इस तरफ लोगों के जाने पर पाबंदी आयद कर दें। मैं कल सुबह अपने बंदों को यहाँ भेजूंगा, वो घूम फिर कर अच्छी तरह मौका वारदात को खंगालेंगे। ऐन मुमकिन है कि इस नोट के टुकड़े के अलावा भी कोई अहम सुराग हाथ लग जाए। हम आपके हुक्म की तामील करेंगे मलक साहब। बड़े चौधरी ने मुतदल अंदाज में कर पूछा कि आपको फरीदपुर वाले वकुआ से भी 100 रुपए वाले नोट का कोई टुकड़ा मिला है? मेरा मतलब है इस टुकड़े का दूसरा हिस्सा। नहीं चौधरी साहब, मैंने नफी में गर्दन हिलाते हुए जवाब दिया। फरीदपुर वाले वाकई की कार्रवाई के वक्त तो दिन की रोशनी मौजूद थी, लेकिन इस कच्चे रास्ते के आसपास या खेतों के अंदर हमें ऐसी कोई शय नहीं मिली। अलबत्ता इन दोनों खूनी वारदातों में कई एक चीजों में गहरी मुमासिलत पाई जाती है। मसलन कौन सी चीजें? छोटे चौधरी ने सवाल उठाया। फरीदपुर वाली वारदात में हुरूज, मुश्ताक और कोचवान अल्लादिता को तांगे पर ही मौत के घाट उतारा गया, लेकिन उनकी लाशों को कच्चे रास्ते के किनारे फेंक कर तांगे को खेतों के अंदर पहुंचा दिया गया। मैंने नपे तुले अल्फाज में वजाहत करते हुए कहा, सलीम अहमद के साथ भी कुछ ऐसा ही मामला हुआ है। यानी उसे किसी और जगह कत्ल करने के बाद उसकी गर्दन कटी लाश को टाली वाले कुएं के नजदीक फेंक दिया गया। कल मेरे स्टाफ के लोग इस मकाम को भी ढूंढ निकालेंगे जहां सलीम की जान ली गई है। इंशाअल्लाह फरीदपुर और शेरगढ़ के सनहात का कोई यानी शायद है, और ना ही किसी ने वकुवात के आसपास किसी किस्म की कोई मशकूक सरगर्मी नोट की। फरीदपुर वाली लाश एक खेत मजदूर करामत अली ने दरियाफ्त की और सीधा ऊंची हवेली पहुंचकर इस आने की इतला दी। करामत अली की तरह का किरदार शेरगढ़ में फीका तेली ने अदा किया है। इलावाजी उन दोनों लर्जा खैज वारदातों में तेज धार बर्छों, भालों, हंजरों और नेजों वगैरह का इस्तेमाल किया गया, लेकिन हमलावर इतने तजुर्बेकार और पेशेवर कातिल थे कि कहीं भी किसी आला कत्ल को छोड़कर नहीं गए। ये मैं लम्हा मौजूद तक की ये तफ्तीश की बात कर रहा हूँ। हो सकता है कि कल दिन की रोशनी में शेरगढ़ वाले वकुआ से कोई आला कत्ल पुलिस के हाथ लग जाए। और सबसे अहम नुक्ता, इन दोनों वारदातों में एक ही खानदान को टारगेट करके उसकी आइंदा नस्ल का खात्मा कर दिया गया, जिससे साफ जाहिर होता है कि कातिलों का ताल्लुक आप ही के दुश्मनों से है। मैं अपनी बात कहकर खामोश हुआ तो चौधरी बरादरान गहरी ऊपर तफक्कर सोच में डूब गए। चौधरी समीउल्लाह के चेहरे पर भी हर जगह तशवीश और दुख ही की हुक्मरानी थी। चंद लम्हात की गंभीर खामोशी के बाद चौधरी याकूब ने ठहरे हुए लहजे में कहा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मलक साहब, मैं भी इसी नतीजे पर पहुंचा हूँ। हमारा जो नुकसान हो चुका उसकी तलाफी या मदावा तो किसी भी कीमत पर मुमकिन नहीं है, लेकिन आप कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि इस वाक़े के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटारे मिलाकर उन्हें इबरतनाक सजाएं दिलवा सके। उनकी हल्की सी हल्की सजा भी भयानक मौत की सूरत होना चाहिए, ताकि हमारे सीनों में भड़की हुई आग की तपिश में किसी कदर कमी वाक़या हो। ये मेरा आप लोगों से वादा है कि मुझे बहुत जल्द मेरे थाने के हवालात में बंद होंगे। मैंने पुरज़म लहजे में कहा, वो सिफाक दरिंदे किसी भी हाल में इबरतनाक सजा से नहीं बच सकेंगे। इन लोगों ने मेरा शुक्रिया अदा किया और मैं उन्हें इंसाफ की कभी उम्मीद दिलाकर वहां से वापस आ गया। जब मैं थाने पहुंचा तो ठंडी ठार रात के 11 बज रहे थे। थाने का अमला मेरी राह देख रहा था। कांस्टेबल मोहम्मद हाशिम तो थाने के बाहर ही मिल गया। मुझे तांगे से उतरता देखकर वो फौरन मेरे नजदीक आ गया। जब मैं चौधरी याकूब के साथ मोजा शेरगढ़ के लिए रवाना हो रहा था, तब तक हाशिम सरकारी अस्पताल से वापस नहीं लौटा था। मैंने उससे पूछा, हाशिम क्या तुम्हारे जुस्से में बहुत ज्यादा गर्मी भर गई है जो इस सर्दी में थाने के सामने चहलकदमी कर रहे हो? ऐसा नहीं मलक साहब, वो मेरे साथ चलते हुए गहरी संजीदगी से बोला। मैंने सवाल किया, तो फिर कैसी बात है? मुझे आपको कुछ दिखाना और कुछ बताना है, बोलशन ज़्यादा अंदाज में बोला, और आपसे मुआफ़ी भी मांगना है। वो क्यों? तुमने ऐसा क्या कर दिया जिसके लिए मुआफ़ी मांगने की जरूरत पेश आ गई? मुझसे एक भूल हो गई मलक साहब, मैं दरअसल लालच में आ गया था, इसलिए मैंने आपसे कुछ छुपा लिया था। बुझारते क्यों डाल रहे हो हाशिम? मैंने उसे घुरा, जो भी कहना है सीधे उस साफ अल्फाज में कह डालो। तुम नहीं जानते कि मुझे सच्ची और खरी बात पसंद है। मैं आपकी सादत से वाकिफ हूँ मलक साहब, मुझे ये भी यकीन है कि आप मेरी खता को माफ़ कर देंगे। उसने बड़े एतमाद से कहा, जब आप अपने कमरे में जाकर बैठेंगे तो दूसरे लोग आपको घेर लेंगे,
اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ یہیں پر میری بات سن لیں۔ ہاشم کے متذبذب اصرار پر میں کچھ ایسا موجود تھا کہ میں نے اس کی بات مان لی اور معتدل انداز میں کہا ٹھیک ہے میں سن رہا ہوں، تم بولنا شروع کرو۔ آج دوپہر میں جب فرید پور والے واقعے کا جائزہ لے رہا تھا تو مجھے تانکے کے اندر سے 100 روپے والے نوٹ کا آدھا حصہ ملا تھا۔ اس نے نہایت ہی سادگی سے بتانا شروع کیا تو میرے دماغ کو 11,000 وولٹ کا جھٹکا لگا۔ میں نے اس خیال سے وہ آدھا نوٹ اٹھا کر اپنی جیب میں رکھ لیا کہ کل میں کسی وقت ادھر جاؤں گا اور اس نوٹ کے دوسرے حصے کو تلاش کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ جانتے ہیں یہ رقم میری 2 ماہ کی تنخواہ کے برابر ہے، اس لیے میرے دل میں لالچ آ گیا تھا۔ لیکن جب میں 3 لاشوں کے ساتھ جائے واردات سے اسپتال کی طرف جا رہا تھا تو میرے ضمیر نے ملامت کی کہ میں نے یہ بات آپ سے کیوں چھپا لی۔ بہرحال جب میں ان لاشوں کو اسپتال پہنچا کر واپس تھانے آیا تو آپ شیر گڑھ سے نکل چکے تھے۔ تب سے میں ادھر ادھر ٹہل کر آپ کی واپسی کا انتظار کر رہا تھا۔ محمد ہاشم کو خبر نہیں تھی کہ اس نے اپنی معافی کی درخواست میں مجھے کتنی بڑی خوشخبری سنا دی تھی۔ نوٹ کا وہ ٹکڑا اس وقت کہاں ہے؟ میرے پاس ہے جناب۔ وہ اپنی پتلون کی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے بولا میں ابھی اس آدھے نوٹ کو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آئندہ 15 سیکنڈ میں 100 روپے والے نوٹ کا وہ آدھا حصہ میرے ہاتھ میں پہنچ چکا تھا۔ جو آدھا نوٹ چودھری اسحاق نے بڑی حویلی میں مجھے دیا تھا اس کا نمبر میری یادداشت میں محفوظ تھا۔ میں نے ہاشم کے دیے ہوئے آدھے نوٹ پر نگاہ ڈالی تو اس امر کی تصدیق ہو گئی یہ دونوں ٹکڑے ایک ہی نوٹ سے تعلق رکھتے تھے۔ میں نے اس ٹکڑے کو بھی اپنی جیب کے اندر اس سے بچھڑے ہوئے ٹکڑے کے پاس پہنچانے کے بعد ہاشم کی طرف دیکھتے ہوئے معتدل انداز میں کہا میں تمہارے اس لالچ کو ایک بشی کمزوری جان کر تمہیں دل سے معاف کرتا ہوں۔ مجھے خوشی ہے کہ تم نے اپنے ضمیر کی آواز پر دھیان دیا اور مجھے سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ یہ عمل تمہیں ایک اچھا انسان ثابت کرتا ہے۔ اس کے بعد میں اپنے کمرے میں آ گیا اور حوالدار نبی بخش اور ASI قادر علی کو بھی وہیں بلا لیا۔ فرید پور سے واپسی پر میری ان سے تفصیلی بات نہیں ہو سکی تھی۔ وہ دونوں میرے بعد اس تھانے میں سینئر تھے۔ میں نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں انہیں دونوں وقوعات کی صورتحال سے آگاہ کرنے کے بعد 100 روپے والے کرنسی نوٹ کے دونوں حصوں کو ان کے سامنے رکھتے ہوئے گمبھیر انداز میں سوال کیا آپ لوگ قاتلوں کی اس پالیسی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ایک بات تو طے ہے ملک صاحب، حوالدار نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا یہ مجھے بہت مالدار ہے اس لیے 100 روپے والے نوٹ کو بے دردی سے پھاڑ کر ادھر ادھر پھینک دیتے ہیں، ورنہ ان چونچلوں کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ میرا دھیان چند سال پہلے والے ایک واقعے کی طرف جا رہا ہے۔ ASI نے گہری سنجیدگی سے کہا ان دنوں میں خانے وال کے ایک تھانے میں تعینات تھا۔ اس علاقے میں خطرناک کرائے کا قاتل یوسف عرف یوسی ہوا کرتا تھا۔ وہ بھاری معاوضے پر لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا کرتا تھا اور جائے وقوع پر کرنسی نوٹ کا ایک حصہ چھوڑ جاتا تھا۔ اس کی یہ ادا کسی کی سمجھ میں نہیں آتی تھی، حتیٰ کہ پولیس والے بھی اس سے اس قدر نالاں تھے کہ اس کے حرام موت مرنے کی دعائیں مانگا کرتے تھے، کیونکہ 1000 کوشش کے باوجود بھی وہ ان کے ہتھے نہیں چڑھا تھا۔ وہ کڑے سے کڑے پہرے میں بھی اپنے مطلوبہ بندے کا شکار کر کے غائب ہو جاتا تھا۔ پھر ایک روز وہ بالکل ہی غائب ہو گیا۔ وہ کہاں چلا گیا اس بارے میں کوئی کچھ بھی نہیں جان سکا۔ رفتہ رفتہ پولیس والے دوسرے لوگ کانے یوسی کو بھول گئے، یہ سوچ لیا کہ وہ کسی اندھیری قبر میں جا سویا ہے۔ تم نے بھی یوسی یعنی یوسف کے نام کے ساتھ لفظ کانا بھی استعمال کیا ہے۔ ASI کے خاموش ہونے پر میں نے سوال اٹھایا کیا اس شفاق و برہم قاتل کی ایک آنکھ میں کوئی خرابی تھی؟ جی ملک صاحب، اس کی ایک آنکھ بے نور تھی، اس لیے اسے کانا یوسی بھی کہا جاتا تھا۔ کیا کبھی تمہارا اسے سامنا ہوا؟ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ میرا مطلب ہے تم نے اسے روبرو دیکھا تھا؟ نہیں ملک صاحب، میں نے صرف اس کے بارے میں سنا ہی تھا، اسے دیکھنے کا کبھی موقع نہیں ملا۔ اور تم یہ سمجھتے ہو کہ وہی کانا یوسی اب ہمارے علاقے میں سرگرم عمل ہو گیا ہے؟ حوالدار نے ASI کی طرف دیکھتے ہوئے نیم تنزی انداز میں کہا اور ان دونوں وارداتوں میں اسی کا ہاتھ ہے۔ میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی۔ وہ حوالدار کی چوٹ پر برا سا منہ بناتے ہوئے بولا میں نے ملک صاحب کے سنائے ہوئے آدھے نوٹوں والے واقعے کے حوالے سے یوسی کا ذکر کیا۔ مجھے نہیں امید کہ وہ اب زندہ بھی ہو، ورنہ اتنے عرصے تک وہ چپ بیٹھنے والا نہیں تھا۔ میں ASI حوالدار کی باہمی چپکلش اور مسابقت سے اچھی طرح واقف تھا۔ وہ خود کو دوسروں سے برتر ثابت کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی باتوں میں سے بڑے بڑے کیڑے نکال کر تو تکار پر اتر آتے تھے۔ قبل اس کے ان کے بیچ کوئی نیا محاذ کھل جاتا۔ میں نے کہا تم لوگ آپس میں الجھنے کے بجائے میری بات دھیان سے سنو۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ تم دونوں نے کل کون کون سا کام انجام دینا ہے۔ وہ میری طرف متوجہ ہو گئے۔ قادر علی، میں نے ASI کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تم کل صبح کسی کانسٹیبل کو ساتھ لے کر شیر گڑھ والے وقوع پر جاؤ کر وہاں سے کوئی اہم سراغ تلاش کرنے کی کوشش کرو گے۔ تمہاری خصوصی کھوج آلے قتل کے حوالے سے ہوگی۔ سمجھ گیا ملک صاحب؟ وہ سر کو اسباتی جنبش دیتے ہوئے فرمانبرداری سے بولا میں آپ کی امید پر پورا اتروں گا انشاءاللہ۔ اور تم کل کا پورا دن تم نے یہاں موجود رہ کر تھانے داری کرنا ہے، مکمل چوکسی اور ذمہ داری کے ساتھ۔ جو آپ کا حکم ملک صاحب، وہ حشاش بشاش لہجے میں بولا اور پوچھا کیا آپ کل کہیں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ ہاں بالکل، میں نے ٹھوس انداز میں جواب دیا۔ میں آپ لوگوں کو اس کیس کے تمام پہلوؤں سے مکمل طور پر آگاہ کر چکا ہوں۔ میں کل صبح پنڈ گوندلا والا جا رہا ہوں چودھری یعقوب احمد کے سیاسی حریف احمد نواز گوندل کا انٹرویو کرنے۔ سر دست ہمارے شک کے دائرے میں اس بندے کے سوا اور کوئی ہے بھی تو نہیں۔ ادھر میری بات ختم ہوئی، ادھر کانسٹیبل محمد ہاشم نے کمرے میں داخل ہو کر اطلاع دی ملک صاحب میں نے آپ کے کوارٹر میں گرما گرم کھانا لگا دیا ہے، تم لوگ آرام کرو کیونکہ کل کا دن بہت لمبا ہونے والا ہے۔ میں یہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہو گیا اور پھر پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے الفاظ میں اضافہ کر دیا
पेट ना पहुंचियां रोटियां ते सबे गल्ला कोटियां। शेरगढ़, फरीदपुर, जमाल नगर और मंजूर कोट की तरह पिंड गोंदला वाला भी मेरे थाने की हदूद में आता था। ये गांव शेरगढ़ से मशरिक में लगभग 8 मील के फासले पर वाक़ था, जबकि मेरे थाने से इसकी सिमत इंतहाई शुमाल मगरिब और दूरी कमोबेश 10 मील थी। मैं कांस्टेबल जावेद के साथ जब पिंड गोंदला वाला पहुंचा तो दोपहर हो चुकी थी और मेरा मतलूबा बंदा अहमद नवाज गोंदल कहीं जाने के लिए पार तोल रहा था। उसने गर्म जोशी से मेरा इस्तकबाल किया और मुझे इज्जत और एहतराम के साथ अपनी हवेली के अंदर ले गया। रस्मी अलग सलैक के बाद मैंने उसे पूछा, गोंदल साहब कहाँ जाने की तैयारी है? मलक साहब आप तो जानते ही कि इंतहाबी मुहिम का आगाज हो चुका है। वो इंसानियत भरे लहजे में बोला, इसी सिलसिले में आजकल कहीं ना कहीं जाना लगा ही रहता है। वैसे इस वक्त मेरा मोजा शेरगढ़ जाने का इरादा था। मुझे पता चला कि वहाँ के 2 चौधरी बिरादरान के साथ कोई अफसोसनाक वाक़या पेश आ गया। मैं उन दोनों के बच्चों के लमनाक अमवात की ताज़ीयत के लिए वहाँ जा रहा था। उसने दानिस्ता या ना दानिस्ता चौधरी याकूब और उसके छोटे भाई चौधरी इसहाक का नाम नहीं लिया था। मैं सरदस्त कोई अंदाजा कायम न कर सका कि ये एक इतफाकी अमल था या इसमें अहमद नवाज गोंदल की बदनीयती छुपी हुई थी। गोंदल साहब, इन चौधरी बिरादरान में से एक इस इलेक्शन में आपका सियासी हरीफ भी है। मैंने उसके चेहरे पर निगाह जमाकर मानी खास अंदाज में कहा, मैं चौधरी याकूब अहमद की बात कर रहा हूँ जनाब, जिसका रिकॉर्ड बताता है कि वो कभी इलेक्शन हारा नहीं है। मलक साहब, हार जीत तो मुकद्दर का खेल है, उसने पुरसोच अंदाज में कहा। किसी इंसान का नसीब किस वक्त चमक उठे या कब दगा दे जाए इसके बारे में कबल अज वक्त कुछ नहीं कहा जा सकता। ये कोई फार्मूला नहीं कि एक शख्स हर मैदान में जिंदगी भर फतह ही हासिल करता रहेगा, और किसी बंदे के बारे में दावत से ये भी नहीं कहा जा सकता कि वो अपने मुकद्दर में अजली अबदी शिकस्ती लिखवाकर इस दुनिया में आया। ये सब कुदरत के खेल हैं सरकार, और अल्लाह तो उन लोगों का भी है जो उसकी जात पर यकीन नहीं रखते। अहमद नवाज गोंदल फरमानदाम होने के बावजूद भी पुरतासुर और दबंग शख्सियत का मालिक था। सबसे अहम बात ये कि वो गुफ्तगू मतलब माकूल और पुरमगज गुफ्तगू के फन से आशना था। ये उससे मेरी पहली मुलाकात थी और उसकी बातचीत ने मुझे मुतासिर किया था। आपने दुरुस्त फरमाया गोंदल साहब, मैंने तायदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा, अल्लाह सभी का है और सभी उसके बंदे और उसके मखलूक हैं। वो इस बिना पर फैसले नहीं करता कि कौन उसे कितना मानता है और कौन उसके वजूद से इनकारी है। आप पुलिस वाले हैं ना, इसलिए आप अल्फाज को इस तरह गिरफ्त में लेते हैं कि जैसे किसी खतरनाक पश्चिम की गर्दन नाप ली हो। ऐसी बात नहीं गोंदल साहब, मैंने साहब को इसे काम लेते हुए कहा। चौधरी याकूब अहमद और उसके छोटे भाई चौधरी इसहाक अहमद ने अपनी किसी दुश्मन की निशानदही की है और न ही किसी शख्स पर इल्जाम लगाया। मैं रूटीन की पूछताछ के लिए हर उस जगह जाऊंगा जहां से कोई ऐसा सुराग हाथ लगने की उम्मीद हो जो मुझे 4 अफराद के कातिलों तक पहुंचा दे। यकीनन आप मेरी बात समझ रहे हैं। मैं आपके पास भी इसी सिलसिले में हाजिर हुआ हूं। तो आपने ये तय कर लिया कि शेरगढ़ और फरीदपुर में पेश आने वाले दोनों अफसोसनाक वाकयात का जिम्मेदार कोई एक ही शख्स या एक ही गिरोह है, इसलिए आपने 4 अफराद के कातिलों की बात की है। इसी दौरान में गोंदल साहब के मुलाजमीन ने हमारे सामने अनवा इकसाम की सामान्य खुर्दोनोश चुन दिया था। ये मैं नहीं, हालातों वाकयात और शवाहिद ने तय किया है। गोंदल साहब के इन दोनों वारदातों के पीछे किसी एक ही पार्टी का हाथ है। मैं मफरूजों पर अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाने का कायल नहीं हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है मलक साहब, उसे ताइशी नजर से मुझे देखते हुए बोला। फिर पूछा, आप किन हालातों वाकयात और शवाहिद की बात करें, क्या मैं इनके बारे में जान सकता हूँ? क्यों नहीं गोंदल साहब, मैंने जल्दी से कहा। मैं आपके ताउन से इस केस को हल करने की नीयत लेकर पिंड गोंदला वाला आया हूँ। आपसे कुछ छुपाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता जनाब। ये आपका बड़ापन और मेरी इज्जत अफजाई है मलक साहब। वह ममनूनियत भरी नजर से मुझे देखते हुए बोला, बताएं, मैं पूरी तवज्जो से सुन रहा हूँ। मैंने नहायत ही मुख्तसर मगर जामे अल्फाज में से आलात कत्ल गारत करी, कातिलों की सिफाकी और बेरहमी के बारे में बताने के बाद 100 रुपए वाले करेंसी नोट के दोनों हिस्सों को उनके सामने रखते हुए ठोस अंदाज में कहा, इनमें से एक टुकड़ा फरीदपुर वाले वकुआ पर और दूसरा टुकड़ा शेरगढ़ के मौका वारदात से मिला। गोंदल साहब, करेंसी नोट के दोनों टुकड़ों पर निगाह पड़ते उसकी आंखें चमक उठी। बेसख्ता उसके मुंह से निकला, ये तो काने यूसी की वारदात का अंदाज है मलक साहब। क्या आप यूसुफ रफ यूसी नामी उस कातिल को जानते हैं? मैंने सरसराती हुई आवाज में इस्तफसार किया। सिर्फ नाम की हद तक, उसने पुरअतमाद लहजे में जवाब दिया। बरसों पहले उसका नाम सुना था। आने वाल और उसके गिरदो नवाह में उसकी बड़ी धूम थी। वो भारी मुआवजा लेकर लोगों को कत्ल किया करता था, लेकिन वो तो कई साल पहले मर खप चुका। अब अगर इसी के अंदाज में नोट का आधा हिस्सा जाए वकुआ पर छोड़कर कत्ल गारत करी शुरू कर दी गई है, तो मैं इन हुंचका वाकयात के जिम्मेदार या जिम्मेदारान के बारे में कुछ नहीं जानता जनाब। अहमद नवाज गोंदल के चेहरे के तासुरात और लब लहजे में मौजूद एतमाद को देखते हुए मेरा पेशा वराना तजुर्बा ये बताता था कि कत्ल की हालिया 2 वारदातों में इसका कोई हाथ है, ना ही इस हवाले से किसी किस्म की मालूमात रखता है। ठीक हो गया गोंदल साहब, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए मोतदल अंदाज में कहा, लेकिन आप इस सिलसिले में मेरी रहनुमाई फरमा सकते हैं। शेरगढ़ के चौधरियों से 1000 इख्तलाफात और सियासी रंजिशों के बावजूद मेरी तरह आपको भी यही ख्वाहिश होगी कि 4 अफराद की अजीतना कमवात के जिम्मेदारों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। मैं गलत तो नहीं कह रहा ना? बिल्कुल नहीं जनाब, आप 16 आने दुरुस्त फरमा रहे हैं। ये कोई मामूली वाकयात नहीं है। मैं आपकी आसानी के लिए चंद इशारे दे सकता हूँ। अगर आपने थानेदाराना सुराग रसां दिमाग का इस्तेमाल किया तो बासहूलत
किसी करामत नतीजे तक पहुंच जाएंगे, इतना मुझे यकीन है। मैं हमतन गोश हूँ कौंदल साहब। ये बात पूरा शेरगढ़ जानता है कि चौधरी साहब का इकलौता बेटा सलीम एक याश तबान जवान था, इसीलिए चौधरी याकूब ने अपनी बेटी अरूज का रिश्ता उसे नहीं दिया था और इसकी शादी फरीदपुर के चौधरी खानदान में कर दी थी। अहमद नवाज गोंदल ने मेरे सवाल का जवाब देते हुए मुतहम्मल अंदाज में बताया। ये बात भी किसी से ढकी छुपी नहीं कि चौधरी याकूब का बेटा मुश्ताक अपने कजन सलीम का गहरा दोस्त था। उनके दरमियान कोई भी राज नहीं था, क्योंकि बहुत सारी बदफेलियों में वो दोनों एक दूसरे के साथ हुआ करते थे। यही मुश्ताक अपनी इकलौती बहन अरूज से बेपनाह मोहब्बत करता था। वो अरूज जो फरीदपुर के चौधरी समीउल्लाह की बीवी थी, उनकी शादी सिर्फ 4 माह ही चल सकी। यहाँ तक बताने के बाद वो यकलख्त खामोश हो गया। चंद लम्हात के बाद मैंने इस तरारी लहजे में इस्तिफसार किया, तो इससे क्या समझ में आता है? समझ में तो उस वक्त आएगा जब आप मेरी बात पर गौर फरमाएंगे मलक साहब। ओमानी खास अंदाज में बोला, अगर आपने इन 4 किरदारों पर तवज्जो दी तो बहुत जल्द इस केस के मामले को हल करने में कामयाब हो जाएंगे। मगर आपने जिन 4 किरदारों का जिक्र किया है उनमें से 3 सलीम अहमद, मुश्ताक अहमद, अरूज समीउल्लाह लुकमा अजल बन चुके हैं। मैंने उलझन ज़दा नजर से उसकी तरफ देखा, लेकिन चौथा किरदार अभी बकायदे हयात है मलक साहब। वो मानी खैज अंदाज में बोला, उसका नाम कत्ल होने वाले किरदार के साथ नथी भी है, जैसा कि आपने भी मेरे सामने अरूज समीउल्लाह का नाम लिया है। हाँ, आपके इन जुबानी और सनसनी खयाज इशारों से मेरी समझ में यही आया है कि अगर मैं अपनी तफ्तीश फरीदपुर की ऊंची हवेली तक महदूद कर दूं तो कामयाबी के इम्कानात रोशन है। मैं ऐसा समझता हूँ, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है मलक साहब। उसने आम से लहजे में कहा, वैसे मैं हर हाल में आपकी सुरखरुई के लिए दुआ गो हूँ। आपके इस खुलूस और अपनायत के लिए तहे दिल से मशकूर हूँ कौंदल साहब। मैंने खड़े होते हुए कहा, इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी। इंशाल्लाह, वो तवाना लहजे में बोला। अगर मुझे शेरगढ़ की तरफ नहीं जाना होता तो मैं आपको शाम तक जरूर यहाँ रोक लेता। बहुत शुक्रिया गोंदल साहब। मैंने उसे अलविदाई मुसाफा किया और हवेली से निकल आया। अहमद नवाज गोंदल ने इशारों कनाई में बहुत कुछ कह दिया था। वापसी के सफर के दौरान में मैं उसकी मन खैज बातों के बारे में सोचता रहा। मुझे मुसलसल खामोश और किसी गंभीरता में डूबा देकर कांस्टेबल जावेद ने कहा, मलक साहब, मैंने जैसा सोचा था उसके बिल्कुल उलट हुआ है। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा और पूछा, जावेद, तुमने ऐसा क्या सोच लिया था? मेरा ख्याल था कि आप गोंदल साहब को गिरफ्तार करके अपने साथ ले आएंगे। वो मायूसी भरे लहजे में बोला, लेकिन आपने तो उससे बड़े दोस्ताना अंदाज में पूछगिछ की है। मेरी एक बात को अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लो जावेद। कानून हर छोटे बड़े, ताकतवर, कमजोर और आला उदना के साथ मसावात का हुक्म देता है, इसलिए कि कानून की नज़र में तमाम इंसानों के हकूक और फ़राइज़ मसावी हैं और उसी कानून का तकाजा के बगैर ठोस सबूत के महज शक की बिनात पर किसी को गिरफ्तार न किया जाए। बाकी जहाँ तक गोंदल साहब से मेरे दोस्ताना रवैये की बात है, तो इसी दोस्ताना रवैये और अपनायत भरे अंदाज की बदौलत मैंने उसकी ज़बान से बड़ी करामत बातें उगलवा ली हैं जो आगे चलकर मेरे बहुत काम आएंगी। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जनाब। वो तायदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला, हर पुलिस वाला आपके अंदाज में नहीं सोचता। आमतौर पर यही देखने में आया कि हम बेबस, लाचार और कमजोर लोगों को बगैर किसी समन या वारंट के ही महज शक की बुनियाद पर गिरफ्तार करके न सिर्फ हवालात में बंद कर देते हैं, बल्कि उनकी जुबान खुलवाने के लिए 100 तफ्तीशी जतन भी करते हैं। चंद आकबत नांदेश एहलकारों के इस गैर जिम्मेदाराना फील के बायस पूरे डिपार्टमेंट को मोरद इल्जाम नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि काली भेड़ें तो हर महकमे में पाई जाती हैं। मैंने दो टोक अंदाज में कहा, बैरकैफ, तुमने पुलिस के जिस उमूमी रवैये का जिक्र किया है वो मेरे नज़दीक बहुत अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। वो सरसराती हुई आवाज में बोला, मलक साहब, आपके साथ काम करके बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। मैंने कांस्टेबल जावेद की बात पर ध्यान नहीं दिया और दोबारा अहमद नवाज गोंदल की बातों पर गौर करने लगा। 15 फरवरी का आगाज बड़े सनसनीखेज अंदाज में हुआ था। पिछली रात जब मैं पिंड गोंदला वाला से वापस आया तो मेरा ज़हन अच्छा खासा उलझा हुआ था। अहमद नवाज गोंदल की मुबहिम, महमल और गोल मोल बातों के अंदर कई एक सरबस्ता राज छुपे हुए थे। उसने बड़े एतमाद के साथ जो भी कहा था मैंने उसे हल्का नहीं लिया था। रात सोते वक्त भी उसके इशारे और कनाई मेरी सोच के अंदर गर्दिश करते रहते। और सुबह जब मकतूलीन की पोस्टमार्टम शुदा लाशें अस्पताल से थाने पहुंची तो एक नया मसला खड़ा हो गया। मैंने फरीदपुर और शेरगढ़ अपने बंदों को भेजकर दोनों मुतासिरा खानदानों को थाने बुला लिया था। मज़कूरा लाशें थाने के सैन में ढकी रखी थी और चौधरी साहिबान मेरे कमरे में मौजूद एक नई बहस छेड़े बैठे थे। चौधरी याकूब अहमद ने मुझसे मुखातिब होते हुए कहा, मलक साहब, सलीम इसहाक का बेटा और मुश्ताक और उरूज दोनों मेरी औलादे हैं। लिहाजा इन तीनों की लाशें हम दोनों भाई अपने साथ देकर जाएंगे। उनकी तदफीन शेरगढ़ के कब्रिस्तान में होगी। चौधरी इसहाक ने बड़े भाई की हाँ में हाँ मिलाते हुए दो टोक अंदाज में कहा, भाईजान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं थानेदार साहब, आप ये तीनों लाशें हमारे हवाले कर दे तो बहुत मेहरबानी होगी जनाब की। हमने कब कहा कि अरूज आपकी बेटी नहीं है याकूब चाचा? चौधरी समीउल्लाह ने अपने ससुर की तरफ देखते हुए कहा, मगर आप इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकते कि वो आपकी बेटी होने के अलावा मेरी मनकूहा भी थी। अरूज की लाश तो फरीदपुर के कब्रिस्तान ही में दफन होगी। अब सलीम और मुश्ताक की लाशों को अपने साथ ले जाएं। हम अरूज और अल्लादिता की लाशें उठा लेते हैं। समीउल्लाह की तजवीज़ माकूल और वजनदार थी, लेकिन चौधरी याकूब अहमद ने बरहमी भरे लहजे में कहा, बरखुदार, मैंने अरूज को पूरे 23 साल तक अपने जिगर का हिस्सा बनाकर पाला था और तुम्हारी शादी को सिर्फ 4 माह हुए।
तुम मेरी बेटी की लाश के दावेदार नहीं बनो तो ये तुम्हारे हक में बेहतर होगा। हम हर कीमत पर उसकी लाश को शेरगढ़ लेकर ही जाएंगे। मेरा दावा गलत या झूठा नहीं है चाचा जान, समीउल्लाह ने हफ्किया अमेज अंदाज में कहा। वो हर सूरत में मेरी बीवी थी और ये हक मुझे कानून और शरीयत ने दिया है कि उसकी लाश का वाहिद वारिस सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूँ। मैं और भाईजान तो अपनी औलादों से यकसर महरूम हो चुके हैं। चौधरी इसहाक ने तपते हुए लहजे में कहा, चुनाचा हमें किसी अच्छे बुरे नतीजे की कतई कोई परवाह नहीं है। अगर तुम अपनी जिद पर अड़े रहे तो तीसरा खुनरेज वाकया इसी थाने के गिरदरवाह में रूनुमा हो सकता है। चौधरी इसहाक ने थाने में बैठकर मेरे सामने चौधरी समीउल्लाह को खतरनाक नताइज की धमकी दी थी। ये सीधी सीधी मेरे मामलात में दखल अंदाजी थी, कबल इसके कि मैं अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करके चौधरी इसहाक के दिमाग के कीड़े झाड़ता। चौधरी हफीजुल्लाह ने पहली बार इस तल्ख व तुर्श बल्कि फसाद बर्पा गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए अपने बेटे से कहा, समीउल्लाह बड़ों के साथ जबान नहीं लड़ाते। तुम्हारे चाचा चौधरी याकूब अहमद बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उरूज की लाश पर उन्हीं का हक बनता है। फिर वो बराह रास्त अपने समधी से मुखातिब होते हुए बोला, चौधरी साहब आप दोनों भाइयों ने अपनी औलाद को खोया है। मैं आप लोगों के दुख दर्द को समझ और महसूस कर सकता हूँ। आप समीउल्लाह की जज्बाती बातों का बुरा न मनाएं और अरूज की लाश को अपने साथ शेरगढ़ ले जाएं। मैं जब ये अरूज बेटी याद आएगी हम शेरगढ़ जाकर उसकी कब्र पर फातह खानी कर लिया करेंगे। इसी बहाने आप लोगों से भी मुलाकात हो जाया करेगी। चौधरी हफीजुल्लाह ने कुशादा दिली का मुजाहरा करते हुए एक मुतवक्का और सर पर मंडलाती हुई खूनरेज जंग को शुरू होने से पहले रोक लिया था। इस दानिशमंदी और बदबारी पर मैं उसे सिताशी नजर से देखने लगा। इलावाजी चौधरी समीउल्लाह की फरमाबरदारी भी लायक तहसीन थी। उसने अपने बाप के फैसले के सामने एक लफ्ज नहीं कहा और खामोश होकर एक तरफ बैठ गया। वो अगरचे अपने अंदर गुस्से से भरा हुआ था, लेकिन उसने किसी झुंझलाहट या हफ्की का इजहार नहीं किया था। आइंदा 1 घंटे के अंदर दोनों पार्टियां अपने अपने हिस्से की लाशें उठाकर थाने से रुखसत हो गई तो मैंने ऐसे ही कादिर अली को अपने कमरे में बुला लिया। उसने कमरे में दाखिल होकर मुझे सलाम किया और मेरे इशारे पर कुर्सी संभाल ली। कादिर अली, वो लोग तो अपने प्यारों की लाशें उठाकर चले गए हैं, लेकिन हमारा असल काम तो अभी शुरू ही नहीं हुआ है। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, मुझे फरीदपुर वाले वकुआ से कुछ खास मिला और ना ही तुमने शेरगढ़ वाले वकुआ के हवाले से कोई खुशखबरी सुनाई है। मुतासरीन तो अपनी औलादों को दफनाने के बाद उनकी मगफिरत और अगली जिंदगी की आसानी के लिए दुआओं और कुरान खानी वगैरह में मसरूफ हो जाएंगे, लेकिन हम हाथ पर हाथ रखे बैठ नहीं सकते। हमारे पेशा वाराना फ़राइज़ का तकाजा तो यही है कि हमें इन अफसोसनाक वाक़यात के जिम्मेदारों को गिरफ्तार करके करारे वाक़ई सजा दिलवाना है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हम अपने काम का आगाज़ कहाँ से करें। सरदस्त हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। मैं आपकी बात को समझ सकता हूँ मलक साहब। मेरा खामोश होने पर ASI ने मुतदल अंदाज में कहा, मैं समझता हूँ बिल्कुल भी खाली हाथ नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? मैंने सवालिया नज़र से उसे देखा। दोनों कुआ जहाज से हमें 100 रुपए वाले करेंसी नोट के जो 2 हिस्से मिले हैं, हम उनकी मदद से तफ्तीश का आगाज कर सकते हैं। और आसानियत भरे लहजे में बोला, वो एक भुलावे के सिवा कुछ नहीं कादिर अली। मैंने कहा, किसी ने हमारी तफ्तीश को गलत रुख पर डालने के लिए वो चाल चली है और वो किसी यकीनन इन वाकयात का जिम्मेदार ही है। इस मौजू पर अहमद नवाज गोंदल से मेरी खुलकर बात हो चुकी है। वो भी यूसी खाना को जानता है। उसके मुताबिक मज़कूरा खतरनाक कातिल बरसों पहले इस दुनिया से रुखसत हो चुका है। उसके अंदाज की हुबहू नकल करने वाला 4 अफराद की बेईमाना अमवात का जिम्मेदार गिरोह बहुत ही शातिर और अय्यार है। उसने हमें एक बंद गली में ला खड़ा कर दिया है, लेकिन मैं हिम्मत हारने वालों में से नहीं हूँ। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। मुझे यकीन है कि इसके अंदर से कुछ ना कुछ ऐसा जरूर निकलेगा जो हमारी तफ्तीश के लिए करामत साबित होगा। इंशाल्लाह मलिक साहब, वो पर वसूख अंदाज में बोला। फिर हमारे दरमियान इन्हीं खुंचका वाकयात और चौधरी बरादरान के रवैयों के हवाले से बात होने लगी। जब कादर अली को चौधरी हफीजुल्लाह के फैसले का इल्म हुआ तो उसने कहा, मलिक साहब ये बंदा बहुत गहरा लगता है। इसने अपने बेटे के मुतालबे की हिमायत ना करके शेरगढ़ के चौधरियों का दिल जीत लिया है, वरना आपने गर्मा गर्मी की जो सूरत हाल बताई है उसमें तो खून खराबा लाजमी था। मैं अपने सामने तो उन्हें किसी भी कीमत पर इसे खुली कानून सीखने की इजाजत नहीं दे सकता था। मैंने कतई लहजे में कहा, अगर चौधरी याकूब अहमद और उसका बरादर ऐसी किसी हिमाकत का इर्तिकाब करता तो मैं मुतलक भूल जाता कि उन्होंने औलाद के हवाले से कितना बड़ा सदमा उठाया। मैं उन्हें पकड़कर हवालात में बंद कर देता, बात की बाद में देखी जाती। वैसे ये मानना पड़ेगा कि चौधरी समीउल्लाह ने इंतहाई जायज और हक की बात की थी। उरूज की लाश उसे मिलना चाहिए थी। इस लाश का हकीकी वारिस वही था। मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ मलिक साहब, यह सही तायदी अंदाज में सर हिलाते हुए बोला। लेकिन शकरगढ़ वाले चौधरी बरादरान मकतूला अरूज की लाश उसके ससुर चौधरी हफीजुल्लाह के माँ और इजाजत से लेकर गए हैं। अगर वो कोई जोर जबरदस्ती करते तो वही आप वाली बात हम भी उन्हें बता देते कि थाने की ताकत क्या होती है। हम यहाँ पर कानून नाफिज करने के लिए बैठे हैं। कानून को अपने हाथ में लेने या उसका मजाक उड़ाने वालों के साथ किसी रूह रियात का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने ASI के ख्यालात और अज़ाइम पर साथ किया और इन वाकयात के दीगर पहलुओं पर गौर करने लगा। उसी सपहर जब मैं असर की नमाज से फारिग हुआ तो सरकारी अस्पताल से पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स आईं, जिनकी तफसील कुछ इस तरह थी। शेरगढ़ वाले वकुआ के मुताबिक मकतूल सलीम अहमद की मौत 13 फरवरी की सपहर 3 से 4 बजे के दरमियान वाक़या हुई थी और उसे किसी तेज दराले की मदद से गला काटकर फना के काट उतारा गया था।
केमिकल एग्जामिनर्स की रिपोर्ट में इस बात की निशानदही की गई थी कि दुनिया से रुखसत होते वक्त उसने शराब की भारी मिकदार अपने मैदे में उतार रखी थी। गोया अहमद नवाज गोंदल की मकतूल के बारे में राय गलत नहीं थी। मरहूम बहुत सारी आदाते बद का हामिल था। फरीदपुर वाले वकुआ से मिलने वाली तीनों लाशों के वक्त मौत में बमुश्किल 5 से 10 मिनट की कमी पेशी थी। मजमूई तौर पर अरूज, मुश्ताक और अल्लादीता ने 13 फरवरी की सुबह 10 से 12 बजे के दरमियान इस दुनिया को हैदराबाद कहा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स के साथ ही उनके लेबॉर्टरी टेस्ट वगैरह के तजज़िये भी मौजूद थे। मुश्ताक और अल्लादीता की टेस्ट रिपोर्ट्स में तो मुझे कुछ खास नजर न आया, लेकिन अरूज की लेबॉर्टरी रिपोर्ट देखकर मेरे ज़हन में रोशनी का एक झमाका हुआ और मैं बकौल किसे चकरा कर रह गया। मज़कूरा रिपोर्ट में मेरे होश उड़ाने वाली सिर्फ एक लाइन थी, अरूज 3 माह की हामला थी। गुज़िश्ता 3 रोज में चौधरी समीउल्लाह से मेरी कई बार बात हुई थी, लेकिन उसने एक मरतबा भी अरूज के पेट से होने का जिक्र नहीं किया था। उन दोनों की शादी को सिर्फ 4 माह हुए थे और लेबॉर्टरी टेस्ट के मुताबिक अरूज पिछले 3 माह से एक जिंदगी को अपने रहम में लिए घूम रही थी। ये इतनी बड़ी खुशखबरी थी कि उसे सबसे पहले उसके बाप को आगाह करना चाहिए था। अगर अरूज ने अपने हमला होने के बारे में समीउल्लाह को बता रखा था और समीउल्लाह या हफीजुल्लाह ने मुझसे जिक्र करना जरूरी नहीं समझा था, तो इसमें खराबी या परेशानी वाली कोई बात नहीं थी। लेकिन अगर वो दोनों बाप बेटा ऊंची हवेली के अगले वारिस की आमद से बेखबर थे, तो इसका एक ही मतलब निकलता था, और वो ये कि अरूज ने दानिस्ता इस खबर को उनसे छुपाया था। अगर अरूज ने दानिस्ता ऐसा किया था, तो उसकी पुरअसरार द्रोह गोई की वजूह तक रसाई हासिल करना मुझ पर वाजिब हो गया था, और इस मकसद के लिए मेरा ऊंची हवेली जाना जरूरी था। चौधरी हफीजुल्लाह और चौधरी समीउल्लाह तो रह गए एक तरफ, मुझे तो शेरगढ़ के चौधरी, खुसूसन चौधरी याकूब अहमद के रवैये पर शदीद हैरत हो रही थी। जब भी कोई औरत उम्मीद से हो जाती है, तो वो ये खुशखबरी सबसे पहले 2 अफराद को सुनाती है। नंबर 1 अपने शौहर और उसके बच्चे के बाप को, नंबर 2 अपनी माँ को। यह तो हो ही नहीं सकता था कि अरूज की माँ मुमताज बीबी को अपनी बेटी के हमला होने की खबर हो और उसने अपने शौहर को न बताया हो। कद बानो और कद खुदा तो एक गाड़ी के 2 पहिए एक दूसरे के राजदार होते हैं। 16 फरवरी की सुबह नाश्ते से फारिग होने के बाद मैंने ऐसे ही कादर अली को अपने साथ लिया और हम दोनों थाने से ऊंची हवेली की जानिब रवाना होके। आज सर्दी कदरे कम और मौसम खुला हुआ खुशगवार महसूस हो रहा था। कादर अली को अपने हमरा लेकर जाने का मेरा एक खास मकसद था। उसे मुझसे अक्सर ये शिकायत रहती थी कि मैं उसे कांस्टेबल्स वगैरह के साथ तो मुख्तलिफ किस्म की महकमा जाती कार्रवाइयों के लिए इधर उधर भेजता रहता हूँ, लेकिन किसी मिशन में कभी मैंने उसे अपने साथ नहीं रखा। सो उसका देरीना शिकवा दूर करने और उसकी दिली ख्वाहिश को पूरा करने की नीयत से मैंने उसे अपने साथ ऊंची हवेली ले जाने का फैसला किया था। कादिर अली, मैंने रास्ते में उससे पूछा, आप तो खुश हो ना? जी मलक साहब, वो दबे दबे जोश के साथ बोला, बात दरअसल ये है जनाब के जूनियर एहलकारों के साथ काम करके कुछ नया सीखने को नहीं मिलता, और इस थाने में मुझसे सीनियर सिर्फ आप ही हैं। उम्मीद है आप मेरी बात समझ गए होंगे। हाँ बिल्कुल, मैं समझ गया, मैंने मुतदल अंदाज में कहा। अब इस फलसफे का दूसरा पहलू भी देखो कादिर अली, तुम इतना तो जानते ही हो कि हर चीज के कम से कम 2 रुख या 2 ज़ाविये लाजमी होते हैं। मैंने कम से कम की बात की है और ज्यादा का तयन करने के लिए इस मामले की नोयत को देखना जरूरी होता है। मलक साहब, आप कह तो बिल्कुल ठीक रहे हैं, वल्जन ज़दा लहजे में बोला। आपकी नवाजिश होगी अगर ये वजाहत भी कर दें कि हमारी हालिया गुफ्तगू से इस मामले का क्या ताल्लुक है। तुमने कहा कि खुद से जूनियर्स के साथ काम करके कुछ नया सीखने को नहीं मिलता। मैंने ठहरे हुए समझाने वाले अंदाज में कहा, तो सीखने के अमल का दूसरा पहलू सिखाने का अमल, और ये दोनों अमल एक दूसरे के लिए वाजिब और मौजिब है। अगर तुम्हारी ये तमन्ना है कि अपने सीनियर्स के साथ काम करके तुम अपने इल्म और तजुर्बे में इजाफा करो, तो तुमसे जूनियर्स को भी अपने दिलो दिमाग में ये चाहत रखने का हक है कि वो तुमसे यानी उसे सीनियर एहलकार के साथ काम करके कुछ नया और बड़ा सीख सके। अगर पुलिस डिपार्टमेंट में से सीखने सिखाने का सिलसिला खत्म हो जाए, तो फिर कांस्टेबल भर्ती होने वाला एक नौजवान अपनी जिंदगी के बेहतरीन 40-45 साल महकमे को देने के बाद भी कांस्टेबल ही रिटायर होगा। अब तुम खुद ही अंदाजा लगा लो कि सूरत हाल में कोई कांस्टेबल एएसआई कादर अली या थाना इंचार्ज मलक सफदर याद कैसे बन सकता था। आपकी बात मेरी समझ में आ गई मलक साहब, वो नितामत भरे लहजे में बोला, और इसके साथ ही मुझे अपनी गलती का एहसास भी हो गया है। हम ऊंची हवेली के नजदीक पहुंचे तो मैंने कादर अली से कहा, मैं चौधरी बाप बेटे से एक इंतहाई हसास और अहम मौजू पर चंद सवालात करने आया हूँ। ये पूछताछ मैं इनसे अलग अलग करूंगा और दोनों सेशन में तुम मेरे साथ मौजूद रहोगे। अपनी आंखों, कानों, दिमाग की खिड़कियां, दरवाजे खुले रखकर मेरी इस तफ्तीश से तुम्हें बहुत कुछ नया और नतीजावर सीखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया मलक साहब, मैं आपकी हिदायत पर पूरी तरह अमल करूंगा। ऐसे मौके रोज रोज थोड़ी मिलते हैं जनाब। हम फरीदपुर में दाखिल होकर ऊंची हवेली की जाने बढ़ने लगे तो मुझे छोटा चौधरी समीउल्लाह घोड़े पर सवार अपनी ही तरफ आता नजर आया। उसने भी मुझे तांगे में बैठा देख लिया था, चुनाचे वो हमारे तांगे के नजदीक आकर रुक गया। अस्सलाम वालेकुम मलक साहब, उसने घोड़े पर बैठे बैठे मुझे सलाम किया और पूछा, मुझे उम्मीद है आप खैरियत से ही आए होंगे। ऊंची हवेली अब और कोई सदमा बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखती थानेदार साहब। फिक्र वाली कोई बात नहीं चौधरी साहब, मैंने तसल्ली में इस अंदाज में कहा। बस मैं इधर से गुजर रहा था तो सोचा आप लोगों से भी सुलाम दुआ कर लूं।
پھر میں نے ذرا دیر کو رکنے کے بعد سوال کیا، ویسے آپ اس وقت کہاں جا رہے ہیں چودھری صاحب؟ میں ساتھ والے پنڈ میں ایک چھوٹے سے کام کے لیے جا رہا ہوں جناب۔ اس نے جواب دیا، 3-4 گھنٹے میں لوٹ آؤں گا، آپ حویلی میں تشریف رکھیں، میں واپس آ کر آپ سے بات کرتا ہوں۔ چودھری صاحب، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے، میں ایک ضروری کام سے کہیں جا رہا ہوں۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، میں اتنی دیر تک حویلی میں رک نہیں سکوں گا، آپ اگر مجھے صرف 10 منٹ دے دیں تو میں آپ کی مرحوم بیوی عروج کے حوالے ایک عام بات کی تصدیق یا تردید کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے چہرے پر الجھن کے آثار نمودار ہوئے۔ ایک لمحے کی قلیل مدت تک متذبذب رہنے کے بعد وہ جلدی سے بولا، جی کیوں نہیں، ضرور۔ میں ان دونوں باپ بیٹے سے الگ الگ میٹنگ کرنے کا سوچ کر ادھر آیا تھا، اس لیے میں نے چودھری سمیع اللہ سے یہ غلط کہا تھا کہ میں کہیں اور جانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ یہ تو ایک آئیڈیل سچویشن تھی کہ وہ مجھے حویلی کے باہر اکیلا ہی مل گیا تھا۔ میں نے اسے موقع غنیمت جانتے ہوئے معتدل انداز میں کہا، تو پھر آ جائیں ادھر تانگے میں۔ اس نے اس بات میں گردن ہلائی اور گھوڑے سے نیچے اترایا۔ میں نے تانگے کے کوچوان کو اشارہ کیا اور تھوڑی دیر کے لیے ادھر ادھر ہو جائے۔ اس اللہ کے بندے نے فوراً سے بیشتر میرے حکم کی تعمیل کر دی۔ میں اس وقت تانگے کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا، جبکہ ایسائی قادر علی اگوی نشست پر موجود تھا۔ چودھری سمیع اللہ نے پچھلی نشست کا رخ کیا تو میں نے اپنے پہلو والی خالی جگہ کو تھپ تھپاتے ہوئے دوستانہ انداز میں کہا، یہاں چودھری صاحب۔ وہ میرے برابر میں آ کر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے اور آنکھوں سے انجانے خدشات اور تفکرات کی جھلک دکھائی دیتی تھی۔ میں نے تشفی بھرے لہجے میں کہا، چودھری صاحب، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اصل میں گزشتہ روز مقتولین کی پوسٹ مارٹم رپورٹس میرے پاس آ گئی تھی۔ آپ کی بیوی کے لیبارٹری ٹیسٹ کی رپورٹ میں ایک اہم چیز کا انکشاف ہوا ہے۔ میں اسی سلسلے میں آپ سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو ایسی کون سی اہم شے مل گئی ہے تھانے دار صاحب؟ وہ اصراری لہجے میں مستفسر ہوا۔ عروج کی رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ موت کے وقت امید سے تھی۔ کیا آپ اس بات سے واقف تھے؟ جی ہاں، اس نے معتدل لہجے میں جواب دیا۔ عروج نے سانحے سے 2-3 دن پہلے ہی مجھے بتایا تھا کہ وہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ اس کے جواب نے میرے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ تاہم اس کے باوجود بھی میں نے اپنی تسلی اور اطمینان کے لیے تصدیق کو ضروری جانا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے استفسار کیا، 2-3 دن پہلے یا 2-3 ماہ پہلے؟ میں نے 2-3 دن کہا ہے ملک صاحب، وہ متفکر انداز میں بولا۔ کیا کوئی گڑبڑ ہے؟ اس نے اضطراری لہجے میں سوال کیا۔ میں تو دال میں کچھ کالا ہونے کی توقع کر رہا تھا، مگر چودھری سمیع اللہ کا واضح جواب تو چیخ چلا کر اس تلخ حقیقت کا اعلان کر رہا تھا کہ بدقسمتی سے یہاں تو پوری دال ہی کالی تھی۔ کوئی گڑبڑ نہیں ہے چودھری صاحب، میں نے اپنے چہرے کے تاثرات کو قابو میں رکھتے ہوئے بڑے اعتماد سے کہا، کیونکہ آپ کی بیوی کے حاملہ ہونے والی بات مجھے اس رپورٹ سے پہلے معلوم نہیں تھی، اس لیے میں ابھی یہ سوچ رہا تھا کہ آپ کے لیے یہ صدمہ کتنا جاگسل ہے۔ آپ کی ہمت اور حوصلے کو سلام ہے کہ ایسے حالات میں بھی زندہ ہیں۔ میں نے موقع محل کی مناسبت سے جو بات بنا دی تھی وہ تیر بہدف مؤثر ثابت ہوئی۔ کسی قسم کے شک میں مبتلا ہوئے بغیر وہ اذیت امیز لہجے میں بولا، قبر کا حال تو مردہ ہی جانتا ہے ملک صاحب، بس کسی زندہ لاش کی طرح چل پھر رہا ہوں، شاید اسی کا نام زندگی ہے ملک صاحب۔ اللہ آپ کو صبر اور برداشت عطا فرمائے۔ چودھری صاحب، میں نے اپنے کام کو غیر محسوس انداز میں آگے بڑھاتے ہوئے کہا، آپ نے یقیناً بڑے چودھری صاحب کو بھی عروج والی خوشخبری کے بارے میں بتایا ہوگا، اور اب عروج کی موت کے بعد تو وہ آپ سے بھی زیادہ افسردہ اور دل شکستہ ہو چکے ہوں گے۔ جب میں نے ابا جی کو یہ بتایا کہ میں باپ بننے والا ہوں تو وہ دادا بننے کی خوشی میں اتنے زیادہ پرجوش ہو گئے تھے کہ میں نے اپنی زندگی میں انہیں اس سے پہلے کبھی اس قدر مسرور اور شادہ نہیں دیکھا تھا۔ نانا تو وہ کئی بار بن چکے ہیں، مگر اپنی نسل کے آگے بڑھنے کی مسرت اور خوشی کچھ الگ ہی ہوتی ہے۔ لیکن عروج کی موت کے ساتھ ہی سب کچھ ختم ہو گیا ملک صاحب، وہ درجہ افسردہ ہو گیا۔ میں آپ کے غم اور صدمے کی شدت کو محسوس کر سکتا ہوں چودھری صاحب، میں نے ہمدردی بھرے لہجے میں کہا۔ پھر اپنے کام کے آخری حصے کو بھی انجام دے ڈالا۔ آپ نے ابھی مجھے بتایا کہ مرحومہ عروج نے اپنی موت سے 2-3 دن پہلے ہی آپ کو باپ بننے کی خوشخبری دی تھی۔ اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ شیر گڑھ والے چودھری برادران عروج کے امید سے ہونے کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے تھے؟ جی بالکل، وہ قطعی لہجے میں بولا۔ اگر عروج 13 تاریخ کو صحیح سلامت شیر گڑھ پہنچ جاتی تو پھر یہ خبر وہاں بھی پہنچ جانا تھی، مگر قدرت سے لڑنا کسی انسان کے باس کی بات نہیں ہے ملک صاحب۔ ویسے میرا ارادہ تھا کہ کم سے کم چاچا یعقوب احمد کو اس حوالے سے آگاہ کر دوں، مگر ابا جی نے مجھے منع کر دیا تھا، اور آپ نے اس روز تھانے میں ان دونوں کے بھائیوں کا رویہ تو دیکھ ہی لیا تھا۔ ان کے انداز میں اپنوں والی کوئی بات تھی ہی نہیں۔ عروج کی موت کے ساتھ ہی انہوں نے مجھ سے ایسا غیریت کا برتاؤ کیا جیسے عروج سے میرا کوئی رشتہ ناتا کبھی رہا ہی نہیں تھا۔ بات کے اختتام پر اس کے لہجے میں کڑواہٹ اود کر آئی تھی۔ میں نے اپنا کام مکمل کر چکنے کے بعد ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا، ہاں، میں نے ان دونوں بھائیوں کے تکبر، ضد اور نامعقولیت کا تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ بہرکیف آپ نے بالکل ٹھیک کیا چودھری صاحب، ایسے بد لحاظ اور گھمنڈی لوگوں سے دور رہنا ہی دانش بندی ہے۔ آپ اب اپنے کام سے جائیں، میں بھی بڑے چودھری صاحب کو سلام کر کے آگے نکل جاؤں گا۔ کیا 4 افراد کے قاتلوں کے بارے میں کچھ پتا چلا ملک صاحب؟ اس نے سرسری انداز میں استفسار کیا۔ تفتیش جاری ہے چودھری صاحب، میں نے معتدل انداز میں جواب دیا۔ اسی سلسلے میں مصروف عمل ہوں، وہ درندے جو کوئی بھی ہوں میں انہیں گرفتار کے بغیر سکون سے نہیں بیٹھوں گا۔
उसने तहे दिल से मेरा शुक्रिया अदा किया और तांगे से उतरकर अपने घोड़े की जानिब बढ़ गया। उसके जाते ही कोचवान वापस तांगे में आ गया और हमारा रुख ऊंची हवेली की सिमत हो गया। मैंने अरूज की पोस्टमार्टम और लेबॉर्ट्री टेस्ट की रिपोर्ट्स को 4 बार पढ़ा था और वो भी नहायत ही बारीक बीनी से, और मुझे मज़कूरा रिपोर्ट्स की सेहत पर जरा सा भी शुबा नहीं था, क्योंकि मेडिकल लीगल ऑफिसर और केमिकल एग्जामिनर की फैसला कुनारा के अलावा रिपोर्ट्स के मुंदरजात भी इस अमर की तस्दीक करते थे कि अपनी मौत के वक्त अरूज 3 माह के पेट से थी। चौधरी समीउल्लाह से उसकी शादी 4 माह कबल यानी गुज़िश्ता साल अक्टूबर में हुई थी। इस मुद्दत को ज़हन में रखकर हिसाब लगाए तो मंतकी नतीजे तक रसाई हासिल करने के लिए किसी रॉकेट साइंस की हर की ज़रूरत नहीं थी। सीधी सी बात यह है कि अरूज के रहम में तुखम रेजी का अमल पिछले साल नवंबर की किसी तारीख को पूरा हो चुका था। अगर वो बीच चौधरी समीउल्लाह का था तो फिर अरूज ने 3 माह के बाद उसे ये खुशखबरी क्यों दी कि वो उसके बच्चे की मां बनने वाली है। इस ताहीरी गलत बयानी के पीछे अरूज की कौन सी चाल या मसलहत पोशीदा थी? इस सवाल का जवाब देने के लिए वो अब जिंदा नहीं थी। इस राज से सिर्फ अरूज ही वाकिफ थी कि उसकी कोख में सांस लेती जिंदगी का माखज चौधरी समीउल्लाह था या फिर कोई और। चौधरी समीउल्लाह तो उसे एक मेवा जानकर उसकी आबियारी करता रहा था, जबकि अरूज की रिपोर्ट उसे कलमी साबित करने पर तुली हुई थी। चौधरी हफीजुल्लाह के मुलाजमीन ने इज्जत और एहतराम के साथ हमें हवेली की बैठक में पहुंचा दिया। चंद ही मिनट में चौधरी खुद भी हमारे साथ मौजूद था। साहब सलामत के बाद उसने अपने एक मुलाजिम को पास बुलाकर कुछ हिदायत देने का इरादा किया ही था कि मैंने मुतदल अंदाज में कहा, चौधरी साहब किसी तकल्लुफ की ज़रूरत नहीं, मैं सिर्फ 10 मिनट आपके पास रुक कर आगे बढ़ जाऊंगा। बस आपसे एक ज़रूरी बात करना थी, इसलिए यहाँ आ गया। आज वो 3 दिन पहले वाले हफीजुल्लाह से बिल्कुल मुख्तलिफ दिखाई दे रहा था। 13 फरवरी की सफाया जब जाए वकुआ पर मेरी से मुलाकात हुई थी तो सरतबा गम दो की तस्वीर बना हुआ था, मगर उस वक्त वो एकदम बेफिक्र और हशाश बशाश नजर आ रहा था। मलक साहब ये क्या बात हुई? उसने शाकी नज़र से मुझे देखते हुए कहा, उस रोज़ भी आप कुछ खाए बे बगैर यहाँ से चले गए थे, आज मैं जी भर कर आपकी खातिरदारी करूंगा। चौधरी साहब मैं आपकी खातिरदारी की ख्वाहिश को बहुत जल्द पूरा कर दूंगा, मैंने नपे तुले अल्फाज में कहा। फिलहाल सिर्फ एक गिलास पानी से काम चल जाएगा। हम काफ़ी टाइट नाश्ता करके थाने से निकले हैं और आज काम भी बहुत ज़्यादा है, लिहाजा 10-15 मिनट के बाद मुझे हर सूरत जाना होगा। उम्मीद है आप मेरी पेशा वराना मजबूरियों का एहसास करेंगे। मैंने अपना मुकदमा इतनी संजीदगी और दो टोक अंदाज में पेश किया था कि उसने मजीद कोई जिद बहस नहीं की। उसने अपने मुलाजिम को चाय बिस्कुट और पानी लाने का हुक्म दिया, फिर मेरी तरफ देखते हुए मुस्तफसिर हुआ, आज किस तरफ चढ़ाई का इरादा है मलक साहब? आप मुझसे ऐसी कौन सी अहम बात करने वाले हैं? जैसा कि मैंने बताया, मेरा आज का दिन बहुत मसरूफ गुजरने वाला है, मैंने गोल मोल जवाब दिया। दीगर कामों के अलावा एक चक्कर पिंड गोंदला वाला का भी लगाना है, वहाँ के चौधरी अहमद नवाज गोंदल से मुलाकात जरूरी है। वो बंदा चौधरी याकूब अहमद का सियासी हरीफ भी है, ऐन मुमकिन है उससे मिलना इस केस को हल करने में मुआविन साबित हो। बाकी जहाँ तक अब आपके सवाल के दूसरे हिस्से का ताल्लुक है, तो इन दिनों खून रेज वारदातों के हवाले से मेरे हाथ एक सबूत लगा है। हो सकता है उस सबूत को देखकर आपके ज़हन में कुछ आ जाए और आप मेरी मदद कर सकें। उसने चौंक कर मुझे देखा और बेहद मोहतात लहजे में पूछा, मलक साहब आपके हाथ ऐसा क्या लग गया है? मैंने अपनी जेब में से 100 रुपये वाले करेंसी नोट के दोनों टुकड़े निकालकर उसके सामने रखते हुए मुतदल अंदाज में कहा, इनमें से एक टुकड़ा फरीदपुर वाले जाय वकुआ से और दूसरा टुकड़ा शेरगढ़ वाले मौका वारदात से मिला है। ये तो सीधा सादा काना यूसी का तरीका वारदात है मलक साहब। नोट के चक्करों पर निगाह पड़ते ही वो सरसराती हुई आवाज में बोला, मगर मैंने सुना है यूसी काना तो बरसों पहले मर खप चुका है। मैंने चौधरी हफीजुल्लाह की आंखों में देखते हुए कहा, फिर ये सब इसे कैसे मंसूब कर सकते हैं? कुछ लोग ऐसा समझते हैं कई साल पहले काना यूसी मारा जा चुका है, और बास का ख्याल है कि वो खानेवाल को छोड़कर शेखुपुरा आबसा था और अब तक मुतहरक है। वो सोच में डूबे हुए लहजे में बोला, अगर खानेवाल और शेखुपुरा की बहस को एक तरफ रख दें और काना यूसी के जिंदा या मुर्दा होने का भी जिक्र न करें, तो इस इम्कान को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि उसी के अंदाज में कोई और मुजरिम जहन बंदा ये काम कर रहा हो, या फिर मुजरिमों के किसी ग्रोह ने उसके तरीक़ेकार को अपना लिया हो। अब इस बारे में क्या कहते हैं? उसने सवाल की गेंद मेरी कोट में फेंक दी थी, सो मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, आपकी बात में वजन है चौधरी साहब, देखते हैं आगे चलकर इस मसले के अंदर से क्या निकलता है। मैं आपके रंजो गम में बराबर का शरीक हूं और मुझे सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि अरूज चौधरी समीउल्लाह को कभी औलाद का तोहफा नहीं दे सकती थी। खैर अब तो इस दुनिया ही से रुखसत हो गई है। ये आपने कैसी बात कर दी मलक साहब? चौंके बगैर उसने कुरेदने वाले अंदाज में सवाल किया, आपको ये कैसे मालूम हुआ कि अरूज बच्चा पैदा करने के काबिल नहीं थी? उसके लेबॉर्ट्री टेस्ट की रिपोर्ट से। मैंने उसकी आंखों में दूर तक झांकते हुए कहा, क्या मतलब है आपका? उसकी कुरेद तशवीश में बदल गई। कल मकतूलीन के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट वगैरह मुझे मौसूल हो गया चौधरी साहब, मैंने उसके चेहरे के तासुरात का बारीक बीनी से जायजा लेते हुए बताया। अरूज की रिपोर्ट को देखकर पता चलता कि वो बांझ थी। मैंने चौधरी हफीजुल्लाह से दानिस्ता द्रोहगोई की थी ताकि चौधरी समीउल्लाह की फराहम करदा मालूमात की तस्दीक या तरदीद हो सके। ये सब इसलिए भी जरूरी था कि अरूज के लेबॉर्ट्री टेस्ट की रिपोर्ट चौधरी समीउल्लाह के चंद मिनट पहले वाले बयान से लगानी खाती थी। अब देखना यह था कि अरूज का सुसर किस सुर ताल और राग में जवाब देता है। मलक साहब आप सियाने बयाने इंसान हैं। उसने मेरे काम को सहल करते हुए बड़े एतमाद और संजीदगी से कहा, सोने रब के हर काम में कोई ना कोई मसलहत पोशीदा होती है।
اگر آگے چل کر عروج کا بانجھ پن ظاہر ہوتا تو مجھے مجبوراً سمیلہ کی دوسری شادی کرانا پڑتی، کیونکہ اولاد تو ہر انسان کے لیے اتنی ہی ضروری ہے جتنی کہ آکسیجن۔ اللہ اس کی مغفرت فرمائے۔ میں نے اور ASI نے بیک زبان کہا آمین۔ چودھری حفیظ اللہ کے جواب سے 2-3 باتیں سامنے آئی تھیں۔ نمبر 1، چودھری سمیع اللہ نے اپنے باپ کو عروج کے حاملہ ہونے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، یعنی چھوٹے چودھری نے مجھ سے غلط بیانی کی تھی۔ نمبر 2، چودھری حفیظ اللہ نے دانستہ عروج کے پر امید ہونے کو چھپانے کی کوشش کی تھی۔ میں نے چودھری حفیظ اللہ پر یہی ظاہر کیا جیسے میں اس کے بیان پہ یقین کر چکا ہوں کہ وہ اپنی بہو کے حاملہ ہونے سے واقف نہیں تھا۔ میں اس کھیل کو جس انداز میں آگے بڑھانے کا ارادہ رکھتا تھا اس کے بنیادی تقاضے کی روح سے بڑے چودھری کو فی الوقت خوش فہمی میں رکھنا بہت ضروری تھا۔ میں نے چودھری حفیظ اللہ کو الوداعی سلام کیا اور ASI قادر علی کے ساتھ اونچی حویلی سے باہر نکل آیا۔ کوئی بھی انسان جب جھوٹ کا سہارا لیتا ہے تو اس کی دروغ گوئی کے پیچھے عموماً 4 وجوہ میں سے کوئی ایک یا ایک سے زیادہ وجوہات ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، وہ کوئی بڑا فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ نمبر 2، وہ کسی بڑے نقصان سے بچنا چاہتا ہے۔ نمبر 3، وہ کسی خطرناک مصیبت کو ٹالنے کا خواہش مند ہے۔ نمبر 4، وہ کسی دوسرے کو مشکل میں ڈالنے کا متمنی ہے۔ یہ بات روز روشن کے مانند میرے دماغ کی آنکھوں کے سامنے کھل چکی تھی کہ اس کیس کو حل کرنے کے لیے مجھے 3 افراد کے جھوٹوں کی حقیقت کو جاننا تھا۔ مذکورہ 3 افراد میں سے ایک عروج تو زمین اوڑھ کر سو چکی تھی اور اب اس کی کسی نوعیت کا رابطہ ممکن نہیں تھا۔ باقی بجے چودھری سمیع اللہ اور اس کا باپ چودھری حفیظ اللہ، اور ان دونوں کی زبانوں کے قفل کھلوانے کے لیے میں نے جو انوکھی چال چلی تھی وہ نہایت ہی مؤثر ثابت ہوئی۔ اگلی صبح چھوٹا چودھری سمیع اللہ اپنے باپ کے ساتھ آنے پہنچ گیا تھا۔ میں اس کی توقع بھی کر رہا تھا، لہٰذا میں نے ان کی متوقع آمد کے حوالے سے اپنے حوالدار کو خصوصی ہدایت دے رکھی تھی۔ وہ مجھے سلام کر کے میرے سامنے کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ چھوٹے چودھری کے چہرے پر ہفکی کے آثار دکھائی دے رہے تھے، جبکہ بڑا چودھری الجھا ہوا نظر آتا تھا۔ چودھری صاحب، میں نے سمیع اللہ کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے کھیل کا ڈراپ سین شروع کر دیا۔ آپ کا موڈ تو مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا، سب خیریت تو ہے نا؟ ملک صاحب، سمیع اللہ کو آپ سے چند شکایتیں پیدا ہو گئی ہیں۔ چودھری حفیظ اللہ بیٹی کی لب کشائی سے پہلے بول اٹھا۔ میرا تو تھانے آنے کا ارادہ بالکل نہیں تھا، بس یہی زبردستی مجھے اپنے ساتھ لے آیا ہے۔ چودھری صاحب، پولیس ڈپارٹمنٹ نے مجھے یہاں لوگوں کی فریادیں اور شکایتیں سننے کے لیے بٹھا رکھا ہے۔ میں نے بڑے چودھری کی بات کے جواب میں سرسری انداز میں کہا، پھر چھوٹے چودھری کی طرف دیکھتے ہوئے ان الفاظ میں اضافہ کر دیا، بتائیں چودھری صاحب، آپ کو مجھ سے کیا شکوہ اور کیا شکایت ہے؟ میں آپ کی تشفی کرنے کا ذمہ دار ہوں۔ صرف 2 باتیں میرا دماغ خراب کری ہیں ملک صاحب، سمیع اللہ نے جھنجھلاہٹ بھرے لہجے میں کہا۔ آپ نے مجھ سے 100 روپے والے کرنسی نوٹ کے 2 ٹکڑوں کا سرے سے ذکر ہی نہیں کیا اور ابا جی کو پوری کہانی سنا ڈالی۔ یہ تو ہے میری پہلی شکایت۔ آپ اس کا جواب دیں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، پھر میں دوسری بات بتاتا ہوں۔ کہانی تو وہی ہے جو تم نے اپنے ابا جی سے سنی ہے۔ میں نے مذکورہ کرنسی نوٹ کے دونوں ٹکڑے اس کے سامنے رکھتے ہوئے سپاٹ آواز میں کہا، آپ کے ابا جی کا کہنا یہ ہے کہ ان دونوں خونی وارداتوں کے پیچھے یوسی کانا یا اسی کی طرز پر کام کرنے والے کسی جرائم پیشہ گروہ کا ہاتھ ہے۔ مجھے بتاؤ، آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہو؟ میں کہا، یوسی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، وہ بے بسی سے بولا، اسی لیے اپنے خیالات کا اظہار نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہو گیا، میں جانتا ہوں کہ یوسی کانا کے موضوع پر آپ سے بات کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، چنانچہ میں نے اس کا ذکر ضروری نہیں جانا۔ اب آپ مجھے دوسری شکایت کے بارے میں بتاؤ۔ آپ نے عروج کی رپورٹ کے حوالے سے بھی ہم دونوں کو 2 الگ کہانیاں سنائی ہیں۔ وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولا، ابا جی کو آپ نے بتایا کہ عروج بانجھ تھی اور مجھ سے کہا کہ وہ میرے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ یہ تضاد کیوں جناب؟ یاد کریں، یہ بات تو عروج نے اپنی موت سے 2-3 دن پہلے آپ کو بتائی تھی کہ وہ آپ کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ میں نے تو عروج کی رپورٹ کا ذکر کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس رپورٹ کے مطابق وہ حاملہ تھی۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا کہ اس کے پیٹ میں آپ کا بچہ ہے۔ ہاں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ گڑبڑائے لہجے میں بولا، مگر الفاظ کے ہیر پھیر سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر عروج امید سے تھی تو ظاہرہ اس کی کوکھ میں میرا ہی بچہ تھا۔ الفاظ کے ہیر پھیر سے جو فرق پڑتا ہے اسے سن کر تمہارا دماغ پھٹ جائے گا چودھری جی۔ میں نے آپ جناب کو بلائے طاق رکھتے ہوئے کرخت لہجے میں کہا، آپ کا مطلب کیا ہے؟ وہ کھڑے انداز میں مستفسر ہوا۔ مطلب یہ کہ اگر عروج کے بطن میں تمہارا بچہ پروان چڑھ رہا ہوتا تو وہ اپنی موت سے 3 ماہ پہلے تمہیں باپ بننے کی خوشخبری سنا چکی ہوتی۔ میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، پوسٹ مارٹم اور لیبارٹری ٹیسٹ کی رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ موت کے وقت عروج 3 ماہ کی حاملہ تھی۔ میں نے ڈرامائی انداز میں توقف کیا، پھر بڑے چودھری کی طرف دیکھتے ہوئے ان الفاظ میں اضافہ کر دیا، آپ نے تو انگریز کے زمانے میں مڈل تک تعلیم حاصل کی تھی، آپ انگلش بآسانی لکھ پڑھ اور سمجھ سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو میری بات کا یقین نہیں تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ بات کے اختتام پر میں نے مذکورہ رپورٹس اپنی میز کی دراز میں سے نکال کر اس کی جانب بڑھا دی۔ چودھری حفیظ اللہ نے بغور ان رپورٹس کا مطالعہ کیا، پھر اپنے بیٹے کی طرف دیکھتے ہوئے مزمحل انداز میں بولا، سمیع اللہ، ملک صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ آپ نے ہم دونوں باپ بیٹے سے جھوٹ کیوں بولا ملک صاحب؟ چھوٹے چودھری نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں مجھ سے استفسار کیا۔ آپ نے مجھ سے 3 ماہ کے حمل والی بات چھپائی اور ابا جی کو بتا دیا کہ عروج بانجھ تھی۔ آخر کیوں؟ حقیقت تک رسائی حاصل کرنے کے لیے اور تم دونوں کے مجھ سے سچ اگلوانے کے لیے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس عمر میں کوئی شک نہیں کہ آپ دونوں میں سے کوئی ایک ان خونریز واقعات کے راز سے واقف ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ دونوں ہی اس معاملے کے رازدان ہوں۔ لیکن اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ بھید اب سربستہ نہیں رہا۔ آپ قانون سے تعاون کرتے ہوئے مجھے سب کچھ سچ سچ بتا دیں گے تو ہم سب کے لیے آسانی ہو جائے گی۔
ملک صاحب، سمیع اللہ نے اضطراری لہجے میں کہا، میں بڑی سے بڑی قسم کھا کر آپ کو یقین دلانے کے لیے تیار ہوں کہ میں اس معاملے کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ تمہارے قسم کھانے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا سمیع اللہ، میں نے بشگاف الفاظ میں کہا۔ مجھے میرے سوال کا جواب چاہیے، اور وہ بھی ابھی کے ابھی۔ ملک صاحب، میں آپ سے تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہوں، چودھری حفیظ اللہ نے گمبھیر انداز میں کہا۔ پھر اپنے بیٹے کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، سمیع اللہ، تم تھوڑی دیر کے لیے باہر جاؤ۔ سمیع اللہ الجھن زدہ انداز میں اٹھا اور چپ چاپ میرے کمرے سے باہر نکل گیا۔ ملک صاحب، چودھری حفیظ اللہ آگے کو جھک کر گمبھیر انداز میں گویا ہوا، ہم عزت دار و غیرت مند لوگ ہیں، یہ کیسے ممکن تھا کہ پرایا خون اونچی حویلی کا اگلا وارث قرار پائے؟ لہٰذا مجھے جو ٹھیک لگا وہ میں نے کیا، بلکہ میں نے کروایا۔ اس معاملے میں سمیع اللہ کا کچھ لینا دینا نہیں ہے، اس لیے میں نے اس کے سامنے بات نہیں کی۔ آپ سمجھدار انسان ہیں، اس بکھیڑے کو ہم دونوں مل کر سمیٹ سکتے ہیں۔ میں آپ کی ہر شرط اور ہر مطالبہ ماننے کو تیار ہوں، بس آپ حکم کریں۔ میں گہری اور آسودہ سانس لے کر رہ گیا۔ ڈھکے چھپے نہیں بلکہ واضح الفاظ میں بڑے چودھری نے 4 افراد کو قتل کروانے کا اقبال کر لیا تھا، مگر میرے لیے کچھ اور جاننا بھی ضروری تھا۔ چودھری صاحب، میں کن شرائط اور کون کون سے قواعد و ضوابط پر اس بکیڑے کو سمیٹنا چاہوں گا، اس کا فیصلہ بعد میں ہوگا۔ میں نے 2 ٹوک انداز میں کہا، پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو عروج کی سنگین غلطی کا کب پتہ چلا تھا؟ لگ بھگ 2 ماہ پہلے، وہ سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں بولا۔ چودھرائن وزیر بیگم کے انتقال پر دوسرے لوگوں کے علاوہ شیر گڑھ والے دونوں چودھری بھائی اور ان کے بچے بھی یہاں آئے تھے، اور میں نے اتفاقاً عروج اور چودھری اسحاق کے بیٹے سلیم کو تنہائی میں باتیں کرتے سن لیا تھا۔ سلیم کسی بات کے لیے عروج سے ضد کر رہا تھا۔ جواب میں عروج نے جو کہا، ان الفاظ نے میرے دماغ کو پھاڑ ڈالا تھا۔ وہ منت ریز لہجے میں سے کہہ رہی تھی، خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دو سلیم، اب میں تمہارے لیے پرائی ہو چکی ہوں۔ تم میری جمی جمائی زندگی کو برباد کرنے کی کوشش مت کرو، یہی کیا کم ہے کہ تمہاری محبت کی یادگار میرے پیٹ میں پل رہی ہے۔ اتنا کہہ کر چودھری خاموش ہو گیا۔ اس کے کہنے کے لیے اب کچھ بھی باقی نہیں بچا تھا۔ عروج کی لیبارٹری ٹیسٹ رپورٹ اس کے اقبال جرم کی تصدیق کرتی تھی۔ چودھری صاحب، آپ کو میری خاطرداری کرنے کی بڑی تمنا تھی، مگر افسوس کہ قدرت نے آپ کو اس کا موقع نہیں دیا۔ ہاں، البتہ یہ سنہری موقع خوش قسمتی سے میرے ہاتھ لگ گیا ہے۔ اس بات کا یقین کر لیں کہ میں آپ کی جم کر ایسی خاطرداری کروں گا کہ جو آپ کو مدتوں یاد رہے گی۔ بات کے اختتام پر میں نے بآواز بلند اپنے حوالدار کو پکارا، نبی بخش، میں نے تمہیں جو خصوصی ہدایت دی تھی ان پر عمل کرنے کا وقت آ گیا، فوراً یہاں آ جاؤ۔ میرے خطرناک تیور دیکھ کر چودھری حفیظ اللہ کی آنکھوں میں خوف کی پرچھائیاں لہرانے لگیں۔ اس نے لجاجت بھرے انداز میں کہا، ملک صاحب، کوئی تو راستہ ہوگا۔ راستہ تو ہر حال میں ہوتا ہے چودھری صاحب، میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، مگر اس وقت آپ کے سامنے جو واحد راستہ ہے وہ میرے تھانے کی حوالات سے عدالت، اور عدالت سے سیدھا جیل کی طرف جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ کی قسمت۔ وہ وحشت اور دہشت بھرے انداز میں مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اسے جو راستہ بتایا تھا اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔